guys, how are you all? Assalamu alaikum. This is Rabia Zahir, and you're listening to The Brown Girl Rant. I hope you're having an amazing day, whatever day you're listening to it. I was about to say, I hope you're having an amazing Wednesday, but a lot of people don't really listen to it on Wednesday, which makes sense. Like, I listen to podcasts at any time I want. I usually don't wait for the day it comes. So that's why I don't even know, okay, when my favorite podcast, on what day my favorite podcast is coming. Which, to my surprise, I actually searched a lot the previous week about podcasts and क्योंकि I wanted to listen more so that I can get more inspiration and get more better in it. So I was seeing that most of the podcasts that were my favorite do come on Wednesday, and I didn't know that. And a lot of podcasts come on Wednesday, which was very surprised. I thought I was the only. No, I didn't thought I was the only one, but I thought that usually a lot of podcast comes twice a week. Which initially I also thought that I should like upload the podcast twice a week. Like, and that's a lot. Or I know I won't be able to do that, so it's better to upload just once a week and be consistent with it. So a lot of podcasts do come on Wednesday, which makes sense because I think it's the mid of the week. So everyone thinks that's a suitable day. A lot of podcasts do come on Friday, which is also amazing. But for me, as I said, I think that podcast is a very weekday thing. It's the thing you want to listen to when you're working or going for work or coming back from work so that uh, you feel good or you feel productive. And that's why I hope you're having an amazing day. But if you're not, then I hope this podcast make your day amazing or give you a little bit energy that you need. uh, so the thing is that the good news is that I am recording this on Saturday, which is the first time I am recording this on Saturday because the past two podcasts, which was the first episode and the second episode, I recorded that on Tuesday and then uploaded that on Tuesday midnight, which is a lot क्योंकि आप मतलब कि मैं पहले रिकॉर्ड करते साथ ही एडिट करना शुरू हो जाती थी. फिर मैं क्योंकि अपलोड करने में भी टाइम लगता है. यू डोंट नो हाउ मच टाइम द एप्पल पॉडकास्ट एंड गूगल पॉडकास्ट विल टेक. तो अपलोड करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है. तो इस वजह से इतने रश में मैं बनाती थी तो मुझे लगता था कि इट्स रियली लाइक compromising the quality or the energy I give. तो अभी मैं सैटरडे को बना रही हूँ. If there's some things that I would like to add on later, or I would like to re-record it maybe. I hope ऐसा ना हो क्योंकि that would be bad. लेकिन जो है अगर मैं फिर से कुछ ऐड करना चाहती हूँ या अभी मैं आधा रिकॉर्ड कर लूँ और आधा मैं बाद में करना चाहूँ तो आई कैन डू इट ऑन संडे. देन आई हैव मंडे ट्यूसडे, तो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम. तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन सैटरडे. द लास्ट एपिसोड आई रिकॉर्डेड ऑन ट्यूसडे, तो इट्स जस्ट मतलब कि क्या 4 days का गैप है. तो और इट टुक मी अ लॉट टू गेट अप एंड रिकॉर्ड इट क्योंकि आई वाज लाइक हाँ कल कर लूँगी परसों कर लूँगी, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम. बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ नो रबिया, यू हैव टू डू इट टुडे. और मुझे लगता है कि इट्स नाइस और वी शुड बी गिविंग आवर सेल्फ द डेडलाइंस क्योंकि इट्स ओके, मतलब कि इट मेक्स अस मोर प्रोडक्टिव. And I feel so accomplished right now कि I got up and I am recording this right now क्योंकि मुझे पता है फिर मैंने बहुत लेजी हो जाना था. और मसला ये भी होता था कि I do wake up late, which I by the way am a morning person. लेकिन पिछले कुछ महीनों से because my job is a remote job and I have to, no, I don't have to work at night, but I decided that I should work at night क्योंकि it's a lot easier to communicate with मतलब के with the other people that work with me. लेकिन it's much easier क्योंकि the actual timing of the job is like from our from 7 p.m. to 3 a.m. तो it's much more easier to work at that time ताकि अगर मुझे किसी से communicate करना है या help लेनी है तो I can मतलब के do it that time. तो और मतलब कि वरना आई कैन वर्क प्रीटी मच एंड एट एनी टाइम. लेकिन अब क्योंकि वो है तो इस वजह से आई जस्ट डिसाइडेड दैट आई वांट टू वर्क एट नाइट. तो आई यूजुअली वर्क एट नाइट व्हिच मतलब कि व्हिच इज़ फाइन क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे इतना रश नहीं होता. मैं आराम से उठती हूँ, मतलब कि आराम से आई हैव द टाइम टू लाइक गेट ड्रेस्ड और गेट रेडी. मतलब कि व्हिच समटाइम्स आई डोंट डू क्योंकि घर में क्या बंदा रेडी हो. और अब आजकल तो वैसे ही सर्दियाँ हैं तो आई डोंट रियली गेट रेडी डेली. लेकिन जो है मतलब कि आई हैव अ टाइम टू लाइक
to to I have time to wake up and absorb everything and then get to work. तो it's मतलब कि it's nice. लेकिन उसकी वजह से I wake up very late, तो उस वजह से जब ट्यूसडे को मैं रिकॉर्ड करती थी तो वैसे ही मुझे उठ के मतलब कि अ, मत उठ के you have to get ready or you have to see or you have to eat और टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स, जिसकी वजह से फिर मतलब कि रिकॉर्ड करने में मुझे और रिकॉर्ड करके फिर आपको एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर अपलोड करने में, तो उसकी वजह से काम पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो आई थिंक सैटरडे इज़ अ अमेजिंग डे टू रिकॉर्ड द पॉडकास्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई मतलब कि डिसाइड टू रिकॉर्ड इट ऑन सैटरडे एंड नाउ आई कैन बी कंसिस्टेंट विद दिस मतलब कि विद रिकॉर्डिंग ऑन सैटरडे। तो ये और what I wanted else to say, what else I wanted to add before we get into the actual topic and actually what we are. हाँ, I was just talking to my school friends and I have a plan, मतलब के for Sunday I have a barbecue plan for Sunday. It's at my friend's home or it's actually मतलब कि it's my university friend's home. It's not with my school friends, लेकिन I have a barbecue plan for Sunday, which I am very excited for. I'm making cinnamon rolls for that. So I'm really excited to make that. Or I am also gonna like try to uh matlab ke capture few clips of the whole day so I can combine it and make a vlog of it and upload it on Instagram. Kyunki I'm still struggling what should I upload on Instagram. I do upload stories, लेकिन मुझे लगता है कि obviously if मुझे लगता है कि obviously Instagram is a very mainstream social media platform and podcast is not that much mainstream, and that Instagram page is the face of this podcast, so I have to keep it a little bit updated so that people could see and then मतलब कि know the existence of this podcast. तो इस वजह से मतलब कि I don't know what to really upload on that Instagram. Like I literally struggle. I upload a lot of stories. मुझे Instagram is so stressful. मतलब कि मैं I'll say this again. With Twitter, I can just tweet anything that comes in a mind. It's very low maintenance Twitter. मतलब कि मेरा Twitter account. तो you can tweet just anything and you can be expressive and मतलब कि फॉर इंस्टाग्राम यू हैव टू प्लान, मतलब कि अगर आपने पोस्ट करनी है तो इट्स सो स्ट्रेसफुल, वो तो आपको पूरा प्लान करना पड़ता है। इवन विद स्टोरी देयर सो मच दैट गोज बिहाइंड इट कि मुझे लगता है इंस्टाग्राम इज वेरी स्ट्रेसफुल। तो मतलब कि अगर जैसे बीच में न्यूज़ चली थी ना कि ट्विटर इज मतलब कि ट्विटर इज एंडिंग, ट्विटर इज शटिंग डाउन, तो अगर इंस्टाग्राम के बारे में कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो आई वोंट बी मैड एट ऑल, आई बी लाइक शुक्र है। I also use Facebook a lot, which is मतलब कि which no one relates to। जब भी मैं किसी को बताती हूँ I use Facebook, तो वो कहते हैं कि किस ज़माने में तुम रह रही हो। लेकिन I think Facebook is a very fun app, like क्योंकि ना Facebook मतलब कि everyone have this assumption कि Facebook पे सारे बूढ़े लोग हैं, it's for boomers और ये वो। लेकिन जो सारे boomers हैं ना, या जो सारे वो Facebook की ऑडियंस थी जो आपको लगता है कि Facebook पे है, वो सारी इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो चुकी है। तो फेसबुक पे अब इट्स जस्ट मीम्स एंड गुड स्टफ फॉर, मतलब कि फेसबुक जेन्युइनली मेक्स मी लाफ, लाइक इफ आई हैव टू मतलब कि रेट इट, तो आई नो नॉट रेटेड व्हाट आई इफ आई हैव टू, पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे आई डोंट आई एम नॉट, नहीं, इफ आई हैव टू लाइक put rate them, no, not rate them, like put them in an order. Huh. So I'll put Twitter on the first place and Facebook on the second. Like, nay, Twitter on first. Actually, Pinterest should be on the top. क्योंकि I think मतलब कि if you don't have a Pinterest, make it right now. It's the best app to ever exist. मुझे लगता है that app is very therapeutic. मतलब कि you can go and मतलब कि क्योंकि you don't have any interaction with any other human being, सबसे पहले तो ये है। तो no one is there looking at you or judging you, मतलब कि अगर कोई कर रहा है और मतलब कि तो इस द तो that's your own space, और you can like watch। और मुझे लगता है हर तरह का कंटेंट Pinterest पे अवेलेबल है, जिस तरह का आप Pinterest ओ Facebook या Instagram पे देखते हो। तो मुझे लगता है कि Pinterest is a very good app। तो Pinterest को मैं पहली मतलब कि Pinterest would go on the first place, Twitter on second, and then Facebook on third, और Instagram मुझे नहीं पता, मे बी अ बेटर ऐप एग्जिस्ट इन दैन Instagram। लेकिन मतलब कि मुझे लगता है कि obviously Instagram is very important and it's
लिटरली मतलब कि एक टाइम था ना व्हेन फेसबुक वाज द मेन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इज द मेन सोशल मीडिया राइट नाउ। तो आई वॉन्ट बी मैड इफ अगर इंस्टाग्राम का कभी डाउनफॉल आ जाता है। आई हेट दैट प्लेस। और मुझे पता है आई नो दैट देयर इज नो बर्ड एंड आई डोंट नीड टू मेक दैट अकाउंट, लेकिन आई शुड हैव, वरना मतलब कि कोई मतलब कि इफ आई वुड जस्ट हैव अपलोडेड द पॉडकास्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म तो मुझे कोई मिलना नहीं था लिसनर। तो मतलब कि और तो इवन दो आई, और जो भी मेरी सारी ऑडियंस मतलब कि मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस इज फ्रॉम ट्विटर, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जो लोग मुझे फॉलो करें वो मेजोरिटी ट्विटर के लोग ही हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स फाइन, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस इज, लेकिन ट्विटर अकाउंट इज माई पर्सनल अकाउंट तो उसको मैं इतना वो, तो दैट कैंट बी द फेस ऑफ दिस पॉडकास्ट। और मैं क्या फजूल बात कर रही हूँ, दिस इज नॉट इवन द टॉपिक राइट नाउ। लेकिन हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ तो आई मतलब के तो मेरे मतलब कि कल मैंने जाना है, बारबेक्यू है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स एंड दे वर लाइक प्लीज लेट्स मीट। और ना मैंने कहा हाँ लेट्स मीट, मतलब फॉर मी व्हेन आई से लेट्स मीट आई मीन कि अच्छा हम अभी प्लान बनाते हैं 2 हफ्ते बाद का। क्योंकि क्योंकि मुझे as much as I love going out, I love going out. I want to go out, और I क्योंकि obviously I have a remote job, तो आई वॉन्ट टू गो आउट मोर, क्योंकि आई स्टे एट होम, मेरा कोई बाहर इतना कोई मतलब कि ज़रूरत का काम नहीं है, तो आई मतलब कि आई लव गोइंग आउट विद पीपल। लेकिन इट्स सो स्ट्रेसफुल टू गेट आउट, क्योंकि even though I am 22.5 year old and I have a job, but still I मतलब कि have to seek permission for my parents, which is मतलब कि totally fine, it's not something I complain about, लेकिन which is very stressful for me, क्योंकि I do think that maybe I go out too much। मतलब कि इतना नहीं, मतलब कि लास्ट में ना, मुझे नहीं याद कि मैं लास्ट कब बाहर निकली थी, लेकिन मतलब कि अपने प्लान के लिए। लेकिन जो है ना इट्स और मतलब कि बट आई ऑलवेज टेंड टू टेक अ 2 weeks गैप बिटवीन टू मीटअप्स। लेकिन तो इट्स लाइक कि तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, लेकिन मतलब कि वो कहते नहीं, क्योंकि उन सबके एग्जाम्स हैं ऑब्वियसली, ऑल ऑफ देम आर इन यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर डूइंग अ डिग्री दैट इज अ 5 year, मतलब कि 5 years की डिग्री, तो इस वजह से मैं पहले ग्रेजुएट हो गई, वो अभी भी पढ़ रही हैं। तो मतलब कि ऑब्वियसली सेमेस्टर्स खत्म हो रहे हैं, तो उसके एग्जाम्स वगैरह हैं। So they just said कि let's meet next week, और I have a plan। I said yes to a plan for Wednesday, और कल मैंने जाना है। तो it's very, तो अभी मुझे सोच के कुछ हो रहा है कि how would I tell my parents on Monday or Tuesday that I have to go out on Wednesday, मतलब कि it's so stressful। लेकिन let's see if we go or not। I मतलब कि मुझे नहीं पता, मुझे पर्सनली ना मतलब कि इट्स नॉट दैट कि मैं कहूँ कि यार मुझे बहुत फोमो हो रहा है अगर मैं नहीं गई, या मेरे बगैर सब एंजॉय करें ये वो फलां फलां। मुझे ना अब आके मैंने वो सोचना अपने जहन से निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स ओके आई इफ आई कांट गो समवेयर ये वो। लेकिन विद माय स्कूल फ्रेंड्स वी मीट लाइक ट्वाइस अ ईयर, वी डोंट इवन मीट ट्वाइस अ ईयर, वी मीट लाइक वंस अ ईयर। तो मुझे मतलब कि आई डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी टू मीट देम, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद में शायद आई विल मीट देम अगेन इन सितंबर और अक्टूबर ऑफ 2023। तो सो इट सक्स दैट मतलब कि सब काम की वजह से वी हैव टू मेक अ प्लान दैट एज सून एज ऑन वेडनेसडे, क्योंकि आई रियली वांटेड टू टेक लाइक टू, आई डू रिक्वायर टेकिंग लाइक अ टाइम टू मतलब कि टेक इन द फैक्ट दैट आई हैव टू गो आउट। पहले मुझे अपने मेंटली अपने आप को करना पड़ता है कि ओ आई हैव टू गो, फिर मुझे प्लान बनाना पड़ता है, फिर मुझे अपने घर वालों को बताना पड़ता है, तो वो मतलब कि उससे ओके हो जाए, फिर मुझे कन्वेंस का सोचना पड़ता है, फिर मुझे ये वो फलां फलां। तो और अभी मुझे पता है मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अ प्लान ऑन संडे। तो तो मुझे पता है कि इस पे मैं फिर स्ट्रेस आउट जो है ना वो मंडे को करूंगी। लेट्स सी इफ वी कैन गो और नॉट। लेकिन you guys will be watching listening this on Wednesday, तो अगर मैं चलेगी तो you guys will know, like I'll post it on story, and only you all will know, मतलब कि I'll say something that only you all will know, so that we can have a, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब कि there's a lot of people that follow me on Instagram but don't really listen to the podcast, so I'll say something secret like a code word
जो कि अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, बट हाँ, मैं इसी के बारे में मतलब कि दे डोंट नो, लेकिन मैं बोलूँगी कि हाँ, मैं चली गई। तो जो मेरी पॉडकास्ट नहीं सुनते वो कन्फ्यूज़ होंगे और जो सुनते हैं दे वुड नो। तो दैट वुड बी नाइस, वी विल हैव अ लिटिल पॉडकास्ट कम्युनिटी। तो yeah, that's the thing. Let's see. Hopefully we go there, or um hopefully we have a great time, and then I'll like shut up for the rest of the month. Yeah. उसके अलावा हाँ, there's another thing that is happening, that is if you know this band called BTS. तो आई एम मतलब कि मुझे नहीं पता, आई एम अ वेरी मॉडरेट, आई adore them, I love them so much, but I never call myself an army. I'm never like, oh yeah, I'm an army, or I'm not crazy for them, या फिर मैंने उनका हर कंटेंट देखा हुआ नहीं है, मैंने उनका हर गाना सुना हुआ नहीं है, लेकिन आई adore them a lot. तो they had a concert, और वो कॉन्सर्ट जो है वो अब सिनेमाज में लग रहा है, तो आई रियली वांट टू गो, क्योंकि मतलब आई डू अडोर देम अ लॉट, तो वो मैंने उसका भी प्लान बनाया हुआ है, बट दैट्स ऑन फरवरी का फर्स्ट वीक, तो वी आर फाइन विद दैट, वो देखी जाएगी। अभी मुझे सिर्फ ये 2 दिन निकल जाए। सेकेंडली आई एक्चुअली डोंट वांटेड टू स्पेंड मनी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी आई परचेज्ड इट। If you all follow me on Instagram, you would know that I purchased a chair for my decks, और फिर उसके बाद I Sapphire पे सेल लगी हुई थी, तो आई शॉप्ड फॉर 10,000 रुपीज ऑन Sapphire, और which my mom totally encouraged me to, मेरा इतना दिल नहीं चाह रहा था, और मैं दुआएं मांग रही थी कि यार डिलीवरी नाउ, ऑर्डर ना आए, लेकिन मम्मा वाज लाइक कि नहीं अभी ले लो, तो तुम्हें पूरी गर्मियाँ फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, which she was right। और कल कपड़े आए हैं, दे ऑल वर लाइक, एक तो दे वर ऑल वर ऑन 50-70% ऑफ, तो और दे वर लाइक गुड पीस ऑफ क्लोथिंग, तो मतलब कि विच मेड मी हैप्पी। लेकिन 10,000 एक बार चले जाना इज अ लॉट, एंड आई हैव टू सेव मनी, क्योंकि आई हैव टू डू मास्टर्स दिस ईयर, विच आई एम नॉट, मतलब कि मैं इतना नहीं करी, तो आई हैव टू मेक अनदर बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, जिसमें मैं अपने पैसे डाल दूँ और फिर भूल जाऊँ। तो अगर मैं अपने दोस्तों के साथ चली गई वेडनेसडे को, तो और मतलब कि आई हैव टू स्पेंड मोर, विच आई डोंट वांट टू, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Speaking of masters, I do also have a class, मतलब कि I'm taking this short course, तो और मैंने पता नहीं उस वक्त क्या सोच के मैंने कहा हाँ कर लेती हूँ, और I have a class of it on 21st December, which is this Friday। और अब मुझे मतलब कि it's been like roughly 6 months since I graduated, and I have totally forgot how it is to study or to sit in a class or all of that, तो I'm very nervous कि पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा, और आई एम नॉट यूज टू टेकिंग क्लासेस, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितने साल हो गए मैंने क्लास नहीं ली, और आई डोंट नो हाउ इट वुड बी टू be in a class after a gap year, मतलब कि after not a gap year actually, लेकिन after so gap months, after so much time, मतलब कि और now I am also मतलब कि now I am like, should I have taken that course or shouldn't I have taken that course, but it's on weekend, the good thing is that कि चलो weekend पे है तो chill scene है, लेकिन दैट वाज नॉट द टॉपिक आई वांटेड टू डिस्कस टुडे, और मैंने 18 मिनट्स इसी पे बात कर ली है। ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल डिड told me that कि you should make the podcast a little bit more longer, which to my surprise is मतलब कि मैं surprise थी, क्योंकि a lot of people told me that they don't really used to listen to podcast, और अब उन्होंने मेरी podcast सुनना शुरू किया और चीज़ें सुनना शुरू किया, and there finally my one of my best friends told me कि podcast is such a productive thing, like उन्होंने मेरी सुनी और उसके बाद they started listening to more, and they started मतलब कि उन्होंने फिर मुझे बताया हाँ यार गाने बंदा नहीं मतलब कि हर टाइम सुन सकता है, तो podcast is such a good thing, and I was like you get it, लेकिन तो मुझे अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी दैट, तो मैं जब मैं 50 मिनट्स की पॉडकास्ट, या मैंने फर्स्ट एपिसोड 40 मिनट्स की थी ना, तो आई वाज लाइक दैट्स अ लॉट, कौन मुझे बैठ के 50 मिनट सुनेगा या 40 मिनट सुनेगा, लेकिन पीपल आर सेइंग कि दे वांट टू लिसन टू मी एंड आई शुड मेक लॉन्गर एपिसोड्स, बट लेट्स सी आज हम कितनी बात करते हैं, वरना आई मतलब कि क्योंकि इट्स सैटरडे, तो आई कैन लाइक ऐड ऑन अ फ्यू थिंग्स ऑन ट्यूसडे और मंडे एंड then edit them, but a very good friend of mine recommended me that वो मतलब कि क्योंकि I was not taking break in between the podcast, और last podcast में you would have realized कि at the end of it, बल्कि middle में ही मतलब कि I मतलब कि मैं मेरा सांस होना शुरू हो गया था, और I wanted to मतलब कि मुझे लगता है I was holding my breath, और मतलब कि
No, I was not holding my breath. I don't know what the word is for, even though I used it, but हाँ मतलब कि I couldn't breathe. तो क्योंकि मैं बोल बोल के थकी थी and I don't take a break, मैं constantly 1 घंटा बोलती रही थी, तो मैं कुछ अर्से बाद मतलब कि मैं बहुत थक गई थी और which you could tell, मैं तो खुद अपनी रिकॉर्डिंग जब सुनती हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि ये मतलब कि जब मैं थक गई हूँ और मैं उस एनर्जी से नहीं बोल रही जो मैं अभी हो गई हूँ। तो विच इज़ वाई मतलब कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया कि व्हाट आई शुड डू इज़ दैट कि मैं शुरू में ही अनाउंस कर दूँ टॉपिक के दीज आर द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, और फिर मैं हर टॉपिक के बाद ब्रेक ले लूँ, और विच इज़ अ वेरी नाइस आइडिया। लेकिन आज मेरे पास जो है ना इतना वो, आज क्योंकि मैं इतने सीरियस टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर, जैसे हम पिछली बार है 2-3 टॉपिक इन माइंड और आई डिस्कस इट, इस बार हम वेरी बहुत कैजुअल डिस्कशन करें क्योंकि दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू डिस्कस। और तो इस वजह से व्हाट टुडेज टॉपिक इज गोना बी ऑल अबाउट फैन गर्लिंग। मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी सो इंटरेस्टेड फॉर इट, क्योंकि अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इंटरनेट फ्रेंड्स दैट आई हैव आर द फ्रेंड्स आई मेड ऑन स्टैन ट्विटर। तो मुझे लगता है that would be a interesting topic to discuss, and I think that a huge sum of my life, I'm 22 and a half, तो more than half of my life have, मतलब कि नहीं यार more than half नहीं, लेकिन a huge sum of my life is consider नहीं, is of me being a fangirl। तो is come no I don't, I won't try, लेकिन you get it, like मेरे, मुझे उर्दू में भी नहीं वर्ड आ रहा, मेरा ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा फैन गर्ल मतलब कि आई हैव बीन अ फैन गर्ल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी ज़िंदगी का फैन गर्लिंग और फैन गर्ल। तो वील टॉक अबाउट फैन गर्लिंग, वील टॉक अबाउट कंटेंट, वील टॉक अबाउट बुक्स, ड्रामास और बहुत कुछ ऐसा व्हिच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मैं ये मतलब कि पहली और आखिरी बार ने डिस्कस करी, दिस गोना बी something that I'll keep discussing. If there's a show I really like, I'll like dedicate a whole podcast for it. And मतलब कि क्योंकि व्हेन आई वॉच समथिंग आई रियली लव टॉकिंग अबाउट इट। तो टुडे विल मतलब कि डू अ लिटिल आउटलाइन, और उसके बाद स्पेशली मुझे लगता है जब मैं अपनी इंटरनेट फ्रेंड्स के साथ जब मैं पॉडकास्ट उनको एज अ गेस्ट बुलाऊंगी तो वी कैन डिस्कस सो मच मोर। तो बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, और आई विल टेक अ ब्रेक, और बट यू ऑल वोंट नो दैट क्योंकि मैं कोई मतलब कि आधे घंटे बाद नहीं कर रही, मैं अभी आई विल जस्ट बी बैक, बट आई एम टेकिंग अ ब्रेक हियर। हाँ No, why I went silent for a while, I don't know. I was actually checking कि record हो रहा है कि नहीं, क्योंकि I just learned how to like record from the same place you lived and not to start a new recording on this very crazy software that I use to record. Is it a software though? The whatever you, it's called Audacity, और मतलब कि it feels so professional कि मुझे समझ नहीं आती, और मैं इतनी बुरी एडिटिंग करती हूँ, मतलब यू ऑल कैन टेल इतने बुरे कट्स होते हैं, और मतलब कि जब मैं सुन भी रही होती हूँ तो इतना फजूल होता है ना, क्योंकि एक तो आई एम नॉट यूज, आई डू एडिट बट आई एम नॉट यूज टू एडिटिंग ऑन कंप्यूटर, एंड इट्स मच मोर easier टू edit on something that you can touch with your fingers, मतलब कि you get it, मतलब कि it's not that easy to edit on a mouse। तो but if you feel that the editing is crappy, it's because it probably is, क्योंकि this whatever this software, this thing in my laptop that I use for recording is crazy or and too professional for me to use। लेकिन moving on, we took a break, और it's nice to have a break actually, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब कि it warmed me up a little bit, and now I'm so ready to talk about the new नहीं, the first topic, क्योंकि I just talked crap in the first 20 minutes। So what we are going to discuss today is that yesterday I watched Pride and Prejudice. It took me such a while. I don't know if I'm pronouncing the word right or not, not क्योंकि मैं मतलब कि I know about this novel, this movie since I was a child, क्योंकि लेकिन जो है I could never know how to pronounce prejudice. So I hope I'm pronouncing it well. I actually searched on Google. Let's
hear मतलब कि let's me search again and hear about it again क्योंकि जो है मुझे लगता है कि I messed it up. Let's see what Google have to say. Prejudice. Prejudice. Okay, I watched Pride and Prejudice or it's such a weird word. मतलब कि इतना मुश्किल pronounce हो रहा है मुझसे, but I do not want it to look stupid. लेकिन I just told you all that I can't pronounce it for the most of my life. So I am stupid now, but it's okay. English is not our first language. It's okay. We should stop being embarrassed of our accent or our pronunciation क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज और मैं ना मतलब कि आई स्टार्टेड वॉचिंग कोरियन ड्रामास तो उनमें मतलब कि उनके जो एक्टर्स या उनके आइडल्स होते हैं जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट बीटीएस तो वो जब इंग्लिश बोलते हैं मतलब उनको हम मतलब कि ऑब्वियसली क्योंकि हम फिर भी ऐसी मुल्क में रह रहे हैं जिसमें हमें इंग्लिश इज लाइक द फर्स्ट लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश इज लाइक द फर्स्ट लैंग्वेज दैट इज टॉट टू अस उर्दू से भी पहले तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली फॉर अस वी आर मच मोर फेमिलियर टू इंग्लिश एंड वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्योंकि हम बचपन से वो लैंग्वेज सीख रहे हैं और हमने उसमें पढ़ा है एग्जाम्स दिए हैं सब कुछ किया है इवन दो इट्स नॉट आवर मदर लैंग्वेज लेकिन जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं विच इज़ वेरी गुड आई अप्रिशिएट देम मतलब कि दे उनका स्कूल सारे उनकी सारी एजुकेशन उनकी अपनी लैंग्वेज में होती है तो तो मकसद मेरा ये था बताने का तो उनके जब एक्टर्स वगैरह कुछ मतलब कि दे स्पीक समथिंग इन इंग्लिश और मतलब कि दे लर्न समथिंग इन इंग्लिश एंड स्पीक इट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस तो everyone is like their English is so cute, their English accent is so cute. So why we consider our own English accent, which is our desi accent, मतलब के पेंडू, or we try to make our accent American और नहीं ब्रिटिश तो कोई करने की कोशिश नहीं करता लेकिन जैसे मुझे लगता है वी बचपन में द इंग्लिश वर्ड वी लर्न वर्ड इन ब्रिटिश एक्सेंट जैसे कि द वर्ड चांस डांस मतलब कि हमने ए मतलब कि हमने इसको ऐसे प्रोनाउंस किया लेकिन जब वी स्टार्टेड वी गॉट एन एक्सपोजर ऑफ अमेरिकन कंटेंट तो मतलब कि वो बोलते थे चांस और डांस तो वी थॉट कि मे बी वो ज़्यादा मॉडर्न वे है उसको कहने का और जबकि ये भी एक एक्सेंट ही है तो यू कांट से मतलब कि यू कांट बी एम्बेरस्ड ऑफ योर एक्सेंट और फॉर नॉट प्रोनाउंसिंग समथिंग दैट इज नॉट योर मदर लैंग्वेज लेकिन द आयरनी इज दैट आई एम saying this if I have a podcast मतलब कि I do speak English in my podcast and that is because क्योंकि मतलब कि even though I have a lot of audience from Pakistan I do have a lot of people I मतलब कि this is so मतलब कि weird to say this क्योंकि मैं इसलिए नहीं I'm not trying to flex it but मतलब कि obviously I have a lot of friends or that I made on Twitter which are not from Pakistan or whose first language is not from Pakistan तो or I do have a मतलब कि 50% audience is Pakistan but 50% audience is from the other countries or someone was saying me कि someone a very good friend of mine who actually gave me the idea that you should like tell the topics in the introduction also told me that she likes that I have a transition between English and Urdu so it makes it much more nice to listen तो इस वजह से मुझे लगता है कि और दूसरी बात ये है कि मैंने एक्चुअली अपने पॉडकास्ट पे जब लैंग्वेज सिलेक्ट करी थी ना इवन दो आई नो कि मे बी आई टॉक इन उर्दू मेजोरिटी लेकिन जब मैं अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करी थी तो आई सिलेक्टेड इंग्लिश सो आई डोंट नो व्हाई आई थॉट के इट माइट इट माइट इट माइट मतलब कि uh, I don't know the word. It might get to a larger audience if I'll select English. मतलब कि it will recommend it to people that क्योंकि I do listen to podcast but I mostly listen to English podcast क्योंकि वो भी मैं बाद में बताऊंगी कि why don't I listen to the podcast from my own country people क्योंकि एक तो हैं भी बहुत कम लेकिन तो इसलिए मुझे लगता है कि if I मतलब कि तो इस वजह से मैं अपने जैसे किसी बंदी जो पाकिस्तान की है उसकी पॉडकास्ट सुनना चाहती हूँ लेकिन क्योंकि मे बी आई लिसन टू मोर इंग्लिश पॉडकास्ट तो मुझे उसकी पॉडकास्ट कभी रिकमेंडेशन में ना आए आई डोंट नो मे बी इट्स अ स्टूपिड मूव एंड आई शुड चेंज इट इनटू उर्दू बट आई सिलेक्टेड द ऑप्शन इंग्लिश आई डोंट नो मतलब कि
मुझे नहीं पता what was going on in my head. Like, and I have a reason to be having this podcast in English or talking some sentences in English. I have a reason, but it does not mean that you should be embarrassed on being not able to pronounce a word or not being able. It's not your mother language, so it's okay. It's fine. Or, मतलब it's fine. So that's another discussion. So we'll have that topic one day. Or I think I'm very confident, matlab ke it took me a while or it took me a lot to be confident for the fact ke oh matlab ke जैसे मैंने अभी मतलब कि I told you कि I can't pronounce that word which I totally forgot how to pronounce prejudice. So I didn't know how to pronounce for the most of my life. कल मैंने वो मूवी देखी है और फिर मैंने और मतलब कि तो फिर मैंने मतलब कि देखा कि हाउ टू प्रोनाउंस इट सो दैट आई कुड से इट ऑन द पॉडकास्ट ताकि लोगों को समझ तो आए. तो आई वॉच प्राइड एंड प्रेजुडिस. कैन वी कॉल इट पी एंड पी? कैन वी मेक इट अ शॉर्ट फॉर्म? दिस इज सच अ वियर्ड वर्ड. मतलब कि इतना मुश्किल वर्ड कौन रखता है? Pride and Prejudice. Huh. So I watched that movie yesterday. It was so good. I was almost in tears. It was the most one of the most beautiful movies I have ever seen. And I know I am late to watching that movie. I should have watched it much earlier. लेकिन फिर मुझे लगता है कि there's always a right time to watch something. मुझे लगता है कि the movie came in 2005. अगर मैं तभी देख लेती तब तो मुझे समझ भी नहीं आती. मैंने 5 साल क्यों ना था. तो इट डिड टुक मी 17 years टू वॉच इट. लेकिन मुझे पता है द वे अब मतलब कि इफ आई वुड हैव वॉच्ड इट अर्लियर तो शायद मुझ पे ये इम्पैक्ट ना होता इस मूवी का जो कि अभी कल रात देखने से हुआ. आई जस्ट टुक अ ब्रेक क्योंकि मुझे पानी पीना था. मे बी आई विल कट इट. लेकिन इफ इट साउंडेड कूल तो मे बी आई एड इट. वी हैव टू कीप दिस पॉडकास्ट नेचुरल. इट्स ओके. Um, so I watched that film yesterday or I was totally मतलब कि ना so आउट ऑफ वर्ड्स, स्पीचलेस. मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आई थी मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि हाउ मच आई लव दैट फिल्म. मैंने जो है ना उसका नॉवल मेरे पास पढ़ा हुआ है. माई सिस्टर ऑर्डर्ड इट बट उसने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा. आई एक्चुअली बोर्ड द बुक ऑफ दिस मूवी when I was 14 years, 14 भी नहीं, when I was 13 years old or 12 years old. लेकिन मैंने पहले 2 पेजेस पढ़े, इतनी मुश्किल अंग्रेजी थी, मैंने कहा कि यार ये क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो मैंने वापस दे दिया. और मुझे लगता है अभी भी अगर मैं नॉवल सोचती पढ़ती तो मुझे मुश्किल ही लगनी थी क्योंकि इट्स वेरी मतलब कि इट्स नॉट द इंग्लिश वी यूज नाउ. तो मुझे तो हाँ, मैं सोचती थी कि ओ आई कैन नॉट वॉच दिस मूवी अनटिल एंड अनलेस मैं बुक ना पढ़ लूँ. बुक पढ़ने से पहले मैंने ये मूवी नहीं देखी. मैंने लिटिल वुमेन भी इतने मतलब कि जो 2018 19 वाली अडेप्शन है, मैंने वो 2 साल इग्नोर की कि मैंने नहीं देखनी. आई रीड अ नॉवल फर्स्ट, रीड अ नॉवल फर्स्ट. देन आई टोल्ड माई सेल्फ, यू नो व्हाट रबिया, यू आर नेवर गोइंग टू रीड दैट नॉवल, तो आराम से बैठ के मूवी देखो. तो मैंने लिटिल वुमेन देखी. वो मैंने मुझे काफी अर्सा हो गया देखे हुए. लेकिन yesterday आई वॉच्ड प्राइड एंड प्रेजुडिस. Why I cannot pronounce this simple word? It's not a simple word. It's मतलब कि it's a weird word. मैं इसकी ना फिर से गूगल कर रही हूँ how to pronounce it क्योंकि I want to learn. At least I'll learn something. Prejudice. Prejudice. So अच्छा, let's be serious. तो जो है ना, मैंने कल I watched P&P yesterday, Prejudice, Pride and Prejudice yesterday. It was so good. और मैंने रात को देखी तो why I am finding it so hard. मैंने अपने ना पूरे ज़हन में बनाया हुआ था मैं क्या-क्या बोलूँगी. हाँ, आई एम सो स्पीचलेस क्योंकि ना आई वाज़ मतलब कि आई वाज़ रियली क वांटिंग टू वॉच रोमांस. लेकिन मुझे फिज़िकल इंटिमेसी नहीं पसंद रोमांस में. मुझे स्लो बर्न इज़ अ वे मतलब कि अगर आपने रोमांस देखना है ना तो स्लो बर्न इज द बेस्ट रोमांस यू कैन एवर. और मुझे नहीं मजा आता फिजिकल इंटीमेसी. मुझे पढ़ने में भी नहीं अब मजा आता. मुझे पहले लगता था कि आई एम फाइन विद रीडिंग इट क्योंकि इट्स बेटर. लेकिन मुझे नहीं पता, मे बी इट्स कोलिन हूवर की बुक्स जिसने वो सारा मेरे जहन में फिजिकल इंटीमेसी थी ना वो सारी मतलब कि इट रूइंड इट ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल इंटीमेसी या ये वो फलाना. तो मुझे आई मतलब कि आई पर्सनली इंजॉय स्लो बर्न. और मैं मतलब कि स्लो बर्न इज माई फेवरेट जॉनर ऑफ रोमांस और मुझे पता है मेजोरिटी का यही होगा.
तो आई वॉच द मूवी, और एक तो इट वाज, मुझे, एक तो आई लव पीरियड प्ले, आई लव पीरियड ड्रामा, और आई लव सीइंग ओल्ड, मतलब कि व्हेन दिस, मतलब कि शो ओल्ड इंग्लिश टाइम, क्योंकि मुझे लगता है दे आर सो इंटरेस्टिंग, द cinematography is so good, the locations are so good, फर्नीचर मुझे, मैं फर्नीचर बहुत शौक से देखती हूँ, द फर्नीचर इज सो गुड, द आउटफिट्स आर सो गुड। तो इट्स अ, मतलब कि इट्स अ वेरी, मतलब मैं हमेशा आई प्रेफर, मतलब कि ओल्ड, वॉचिंग ओल्ड इंग्लिश पीरियड ड्रामा मूवीज। और ये मुझे लिटिल में, लिटिल मुझे लिटिल वुमेन देखने के बाद रियलाइज हुआ कि मे बी आई लव, मुझे पाकिस्तान में भी, even with Pakistan, I love watching old Indian, old Pakistani period plays। इंडिया कहाँ से बीच में आ गया, इवन विद इंडिया। लेकिन आर्ट, मतलब कि आई वांटेड टू टॉक अबाउट कंटेंट एंड फैन गर्लिंग। अच्छा, पहले आई टॉक अबाउट फैन गर्लिंग। एक्चुअली मेरा ये मसला है कि व्हेन आई वॉच समथिंग, राइट, जब मैं कोई चीज देखती हूँ ना, तो मैं एक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो देखती ही नहीं हूँ। मैं जब किसी चीज से, मैं चीज देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद आई है ना, आई गेट ऑब्सेस्ड विद इट। तो मैं, मुझे फिर ना उसकी रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी मिलती नहीं है। तो फिर फिर आई वांट टू टॉक अबाउट इट, आई वांट टू नो अबाउट द एक्टर्स, आई वांट टू वॉच ऑल द बिहाइंड द सीन्स, आई वांट टू नो, आई वांट टू सी ऑल द इंटरव्यूज, मुझे सब कुछ देखना है। तो मेरे लिए ना बहुत मुश्किल होता है कि ना, एक एक चीज, मुझे एक कंटेंट पसंद आ गया तो उसको लेट गो करके कोई और नई रिप्लेसमेंट ढूंढना, मैं इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाती। एंड इट टेक्स मी अ ईयर एटलीस्ट टू गेट ओवर बाय अ शो कंप्लीटली। वरना कभी कभी, मतलब कि मैं, अगर मुझे कोई शो बहुत पसंद आ गया ना, फिर मैं उसके बारे में हर वक्त सोचती रहती हूँ, और फिर मुझे कोई भी उस तरह का पसंद नहीं आता। इस वजह से ना मुझे लगता है कि मूवीज मतलब क्या, वो 2 घंटे की होती है, तो आप मतलब कि देखो और यू गेट ओवर बाय इट। मतलब कि लाइक द मूवी आई वॉच्ड यस्टरडे, और प्राइड एंड प्रेजुडिस। मुझे लगता है एवरीवन इज लाफिंग राइट नाउ, कि तो मुझे बस पी एंड पी बोलना चाहिए, द जेन ऑस्टिन नॉवल। तो मैंने, मतलब कि आई वॉच इट यस्टरडे, आई लव्ड इट सो मच, लेकिन आई कैन वॉच अनदर फिल्म राइट नाउ। लेकिन अगर मैं कोई सीजन देखूं या कोई ऐसी चीज देखूं दैट इज बेस्ड ऑन एपिसोड्स, मतलब कि, तो वो फिर मुझे ना, मैं अटैच भी ज्यादा हो जाती हूँ उस चीज से, फिर इट टेक्स मी अ लॉट टू गेट ओवर बाय इट। और मतलब कि जब मैं टीन एजर थी तो तब मैं उसकी फैन गर्ल बन जाती थी। तो आई हैव बिन अ फैन गर्ल, मतलब कि all my teenage years, और at my early 20s, जो अभी early 20s अभी भी है, मतलब कि initially the initial 20s। तो which is fun। लेकिन now looking back I do not think that was, मतलब के healthy thing, क्योंकि if you are from stan Twitter, मतलब के, या on Instagram, मुझे लगता है stan Twitter more, क्योंकि ज्यादातर वहीं पे, मतलब कि सब कुछ होता है। और मुझे मुझे लगता है ट्विटर इज अ मोर एक्सप्रेसिव ऐप। तो आप जो, अब जो भी आपको, जो भी एक्टर या कोई शो या कुछ भी पसंद है, वो आप उसके बारे में एक्सप्रेसिव ज़्यादा ट्विटर पे हो सकते हो इंस्टाग्राम के मुकाबले। लेकिन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल दैट डोंट रियली यूज ट्विटर एंड स्टिल डू फैन गर्ल। तो मे बी यू कांट रिलेट टू इट, लेकिन थिंग इज दैट कि ना, आपने कोई शो देखा है, आपको वो शो बहुत पसंद आया, आप उस एक्टर एक्ट्रेस या किसी चीज़ के भी फैन बन गए हो, तो फिर ये होता है कि जितनी आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती जाती है ना, उतना वो, मतलब कि इट्स सो, इतना वो चीज़ आपके लिए स्ट्रेसफुल होती जाती है। आप जितनी इन्फॉर्मेशन लोगे ना, जब आप एक बुक पढ़ते हो और आपको बहुत पसंद है, या आपने कोई शो देखा, आपको शो बहुत पसंद आ गया, तो यू आर लाइक, लेट मी नो व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट। द मोर यू विल सी, want to, you will be keen to know what other people think about it, या फिर मतलब कि मुझे और लोगों को सुनना है या मुझे इसके बारे में और रिसर्च करनी है। द मोर फ्लॉज यू विल फाइंड इन इट, क्योंकि कोई कहेगा, कोई आपका फेवरेट सीन होगा, कोई कहेगा नो दैट सीन वाज एक्चुअली नॉट दैट वेल रिटन, या फिर कोई आपका फेवरेट कैरेक्टर होगा, वो कहेगा नो दैट कैरेक्टर वाज एक्चुअली रियली अनोइंग। और फिर आप उस चीज को, उसको अगर आप बहुत ज्यादा हो गया तो आप उसको डिफेंड करोगे, या मतलब मुझे लगता है कि इवन दो, ये मतलब कि हम कहते हैं कि ओ इट डजंट अफेक्ट्स अस, लेकिन पीपल, अदर पीपल्स रिव्यूज, या फिर अगर सारे एक चीज को प्रॉब्लमेटिक बोल रहे हैं ना, कि यार ये सीन नहीं सही, या इट्स नॉट वेल डायरेक्टेड, या द करेक्टर हैव अ फ्लॉ, ये वो, तो इट, द थिंग डज गेट सेटल इन माय माइंड। और मैं फिर उस चीज को उस तरह नहीं पसंद कर सकती कि नहीं यार, मतलब सही था या नहीं था। जैसे मैं एक पाकिस्तानी शो देखती थी, और उस शो का नाम था ये दिल मेरा, ओके। तो
विच और किसी को शो के बारे में पता है तो शाउट आउट टू यू। तो मुझे वो शो बहुत पसंद था। इट वाज साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जो कि नहीं था, इट वाज अ वेरी बैड, मतलब के बैडली डायरेक्टेड। लेकिन आई डू नॉट रियलाइज दैट टाइम, और ना मैं वो शो इंजॉय कर रही थी, तो मैंने कहा ओ आई लव दिस शो सो मच दैट आई शुड हाइप इट ऑन ट्विटर। जब मैं ट्विटर पे गई और मैंने उसके रिव्यूज सुनना शुरू किए, तो मुझे पता लगा ओ ये शो तो बहुत फ्लॉड है, ये कैरेक्टर तो बहुत फ्लॉड है, ये सीन तो बैडली रिटन है, ये वो है। तो मुझे लगता है जितनी आप उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहोगे ना, करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा ना आपके लिए वो चीज़ स्ट्रेसफुल हो जाएगी, और उतने ज़्यादा आपको ना उस चीज़ में फ्लॉज नजर आएंगे। इसलिए इफ़ यू एक्चुअली लव समथिंग, तो इट्स टोटली फाइन टू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। मतलब क्योंकि अगर किसी को हैरी पॉटर बहुत पसंद है, तो वो जब सुनेगा कि, और मतलब के तो सुनेगा कि ओ जेके रोलिंग इज एक्चुअली वेरी प्रॉब्लमेटिक, तो मुझे नहीं लगता कि यू कैन देन मतलब कि लव द थिंग द सेम वे एज, मतलब कि कुछ लोग मुझे पता है कि कर लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई गेट इफेक्टेड। मैं अगर किसी चीज के रिव्यू सुनो ना, और मतलब कि जो क्रिटिक्स है वो कि नहीं ये अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, तो इट डज इफेक्ट्स मी। तो मुझे लगता है कि फैन गर्लिंग इज गुड, बट इट ब्रिंग्स इट कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि आप कोई, और अगर आप बहुत ज्यादा मतलब कि सुना, मतलब मुझे लगता है ऑब्वियसली फिर दूसरे एक्टर्स के फैन आ जाते हैं जो कि चाहते हैं कि यार मतलब इस एक्ट ये एक्टर इतना नहीं अच्छा है, जो कि जान के फ्लॉज निकालते हैं, तो देन यू स्टार्ट फाइटिंग विद देम, व्हिच इज आल्सो लाइक अनदर। मुझे लगता है कि इट डज। और मैं ना, मेरी मतलब कि माई सिस्टर इज वेरी मच इन्वॉल्व इन स्टैंड ट्विटर, आई एम नॉट, क्योंकि आई डू मतलब कि अभी भी मुझे लगता है कि आई डू, अगर मैं कोई अच्छा शो देखूँ ना या कोई अच्छी मूवी, तो आई विल स्टार्ट स्क्रीमिंग अबाउट इट ऑन ट्विटर। और लेकिन फिर अब मैं ये करती हूँ कि आई डोंट रियली लाइक ट्राई टू नो कि यार ये एक्टर था, इसके अंदर ये मुझे बहुत पसंद आया है, तो आई शुड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, मुझे इसके सारे ये प्रोजेक्ट्स भी देखने, वो भी करना, वो भी करना है। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे इसका ये कैरेक्टर पसंद था, बस सही है। It's okay for me to love an actor in this one role and not watch every single thing he have ever done since he was born. It's okay. Like मुझे so I told you that I started watching Korean dramas. तो मेरा पहला Korean drama था Vincent. So loved that show. I can talk about that show. Like I can make another episode about that show. लेकिन मुझे मतलब कि क्योंकि इट्स द मोस्ट रीसेंट थिंग दैट आई वॉच्ड और मुझे बहुत पसंद आई, हालांकि वो इतनी रिसेंट नहीं है, मैंने 4 महीने पहले देखी थी, बट दैट्स द शो आई कुडंट गेट ओवर बाय। लेकिन उसका जो एक्टर है, आई लव द कैरेक्टर और आई लव दैट एक्टर। लेकिन मतलब कि इट्स, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इन ऑर्डर टू प्रूव दैट आई रियली लव दैट एक्टर आई नीड टू वॉच एवरी सिंगल थिंग दैट मैन हैव एवर डिड, एंड नीड टू नो एवरी सिंगल थिंग दैट मतलब कि आउट ऑफ द मीडिया टू which that man did, ताकि मैं मतलब कि कह सकूं कि oh I'm a fan of him, I can be a fan of him and I don't need to have every single information about him, that if that makes sense, right? मुझे लगता है कि मुझे आई डू रियलाइज कि a lot of people also fangirl, क्योंकि sometimes you do get a reply back or a like from the actor you, मतलब which is very rare, लेकिन you do get, which is rewarding, but it's fine। मतलब मुझे मतलब कि अब आके मुझे रियलाइज होता है इट्स फाइन, आई डिड ऑल्सो गेट लाइक्स और रीट्वीट्स और ये वो और डीएम और ये सब कुछ फलाफला। लेकिन मुझे लगता है कि द मोर यू गेट इन्वॉल्व इन द थिंग, द मोर इट टेक्स अवे द प्लेजर ऑफ वॉचिंग दैट थिंग और लविंग दैट थिंग। इट्स मतलब कि इट्स वेरी सिंपल। और मुझे लगता है कि मतलब कि अगर कोई भी इस वक्त है स्टैंड कर रहा है, दैट वुड एग्री विद me कि it does takes the pleasure। और there is nothing more enjoyable than watching a show from a neutral point of view and then selecting what character you like the most। अगर आपका ऑलरेडी कोई biased actor है ना, जैसे मुझे अगर सॉन्ग जोंग की बहुत पसंद है, मतलब कि जो कोरियन शो में जो उसका था, और मैं उसका नेक्स्ट शो देख रही हूँ कि यार मुझे, मैंने विंसेंजो देखा, मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा, तो नाउ आई विल वॉच न्यू शो ऑफ हिम। तो मुझे वो कैरेक्टर, मुझे वो एक्टर पसंद है ना, तो मैं उसके कैरेक्टर के लिए बाइस्ड होंगी। तो मैं उस मतलब कि आई वॉन्ट बी वॉच, मतलब कि आई वॉन्ट बी इंजॉइंग द अदर कैरेक्टर द सेम वे, क्योंकि आई वॉन्ट हिज कैरेक्टर टू बी द बेस्ट कैरेक्टर, और इट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन माई हेड कि मुझे ये एक्टर का यही कैरेक्टर पसंद करना है। और अगर मेरे फेवरेट एक्टर का इतना परफॉर्मेंस मार्जिन नहीं है, या कोई और कैरेक्टर उसके कैरेक्टर को आउटशाइन कर रहा है,
तो मुझे दुख भी होगा कि नहीं यार क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरा फेवरेट एक्टर क्यों नहीं इस ड्रामे में, सबका फेवरेट एक्टर। तो मुझे लगता है कि विच इज़ वाई आई थिंक दैट इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एंजॉय अ शो बीइंग अ न्यूट्रल ऑडियंस। और अब मैंने मतलब कि ना, इट्स बिन लाइक, मतलब क्या, मतलब जैसे कि आई टोल्ड दैट आई स्टार्टेड वाचिंग कोरियन शोज। और तो इवन दो आई हैव जस्ट वॉच टू कोरियन शोज, एक मैंने विंसेंजो देखे और एक मैंने माई लिबरेशन नोट्स देखे। तो बोथ वर वेरी गुड शोज। तो मुझे मतलब कि मैं कहती हूँ ना कि ओ मतलब कि इवन माई लिबरेशन नोट में जो लीड एक्टर था, आई रियली लाइक हिम अ लॉट। आई डोंट नो हिज नेम, लेकिन मतलब कि मुझे आई रियली लाइक हिम। तो अगर मुझे कोई कहता है ना कि ओ इस तुम्हें ये एक्टर बहुत पसंद आया ना, तो वॉच अनदर शो ऑफ हिम, तो आई एम लाइक नो, आई वांट टू वॉच एन अ गुड शो। I don't want to watch the actor in another show क्योंकि I know then I'll get biased of that actor and his character, और I want him to be the मतलब कि best character of the show even though if he's not. तो मुझे लगता है there is nothing more enjoyable than to watch a show from a neutral point of view, and then having your favorite character naturally, and then maybe hyping it or tweeting about it or loving it, और फिर और enjoying it, एंड देन मतलब कि जब शो खत्म हो गया तो बस चैप्टर खत्म, देन बस खत्म। लाइक यू डोंट नीड टू नो कि ओ और कौन कौन से शो इस डायरेक्टर या इस नहीं, डायरेक्टर राइटर का तो कोई फैन नहीं होता, इस एक्टर के हैं, बस ठीक है, आई लव दिस एक्टर फॉर दिस शो, बस ना आई वांट टू वॉच अनदर गुड शो। तो मुझे लगता है कि शोज जो है ना वो एक्टर्स के लिए नहीं, वो उस मतलब के shows, you should watch the show because it's a good show, not because it have a great cast। मुझे मतलब कि मेरा ना अब आके ये मतलब कि I do consider it a lot। इवन फिर मतलब के वेस्ट कंटेंट जब भी मैं वो देखती हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं देखती ओ ये एक्टर कौन है। मुझे बहुत से एक्टर्स मतलब के ना, क्योंकि आई कीप वॉचिंग लाइक इंटरव्यूज ऑफ एक्टर्स, क्योंकि मैंने कहा ना आई कंज्यूम फेसबुक अलॉट। तो फेसबुक पे ना, फेसबुक का एक फीचर है फेसबुक वॉच, विच हैव रिप्लेस्ड यूट्यूब फॉर मी। मतलब कि मैं उसको स्क्रॉल करती रहती हूँ, इट हैव ऑल द कंटेंट दैट यूट्यूब हैव, लेकिन वो ज़्यादा एक्सेसिबल, ज़्यादा मज़े का है एक्सेस करने में। तो ना उस पे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू आते रहते हैं, जैसे एंड्रयू गारफील्ड है, मैंने उसके सारे उस बंदे के इंटरव्यू देखे हैं, आई एम ऑब्सेस्ड विद हिम, बट आई हैवंट वॉच्ड अ सिंगल मूवी ऑफ हिम। which is मतलब कि which is fine, I think I love Timothy Chalamet, दैट्स हिज नेम, आई डोंट नो। तो और लेकिन मैंने उसका सिर्फ एक ही एंड आई वॉच ऑल हिज इंटरव्यूज, जो भी आता है आई वॉच ऑल हिज इंटरव्यूज, लेकिन मैंने सिर्फ उसके एक मूवी देखी हुई है, व्हिच इज लिटिल मोमेंट। तो मुझे लगता है कि यू कैन लव एन एक्टर बट यू डोंट नीड टू वॉच एवरी सिंगल थिंग दैट ही डज, क्योंकि आप, मुझे लगता है मैंने बहुत से फैन गर्ल्स देखी हुई हैं जो अपने आप पे, जो बहुत प्रेशर लेती हैं अपने आप पे कि ओ आई नीड टू पोस्ट एंड एडिट, ओ आई नीड टू स्क्रीन रिकॉर्ड। मुझे मतलब कि जस्ट वॉच मतलब कि एंजॉय द शो। जब आप फैन गर्ल होते हो ना, तो फिर आपके जहन में आप शो नहीं देख रहे होते, यू आर थिंकिंग कि ओ आई नीड टू गेट गुड स्क्रीन शॉट्स दैट आई नीड टू ट्वीट लेटर, और आई नीड टू स्क्रीन रिकॉर्ड दैट सीन क्योंकि दिस एक्टर लुक्ड सो क्यूट, माई फेवरेट एक्टर लुक्ड सो क्यूट इन इट दैट आई हैव टू पोस्ट इट लेटर और पोस्ट इट इन एन एडेड, which takes away the pleasure of enjoying a show। मतलब कि क्यों देख रहे हो यार। और अगर आप फिर से मतलब कि वो देख रहे हो फिर से, मतलब कि आप उस एडिट करने के लिए, आप फिर से वो रिकॉर्ड करने के लिए देख रहे हो, तो मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो एडिटिंग, इवन दो आई रियली एंजॉय एडिट्स, तो लेकिन आई लव व्हेन समवन मेक्स अ स्क्रीन पैक ऑफ इट, इट्स सो मच इजियर। मतलब कि आई यूज टू एडिट टू, आई हैव मेड फैन एडिट्स टू। और अभी भी मैं कोई बहुत अच्छा शो हो ना, और फिर मैं कोई गाना सुनूं जो उस शो से बहुत रेजोनेट करता है, क्योंकि दैट्स माय फेवरेट थिंग, मतलब कि कोई मुझे ऐसा गाना मिल जाए दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माय फेवरेट शो, तो फिर ना मैं इमेजिन करती हूँ, मैं कहती हूँ कि नो आई नीड टू मेक एन एडिट ऑफ दिस, देन आई स्टॉप माई सेल्फ, मैं कहती हूँ कि यार इस चीज़ में मत पढ़ो, क्योंकि इट्स सो स्ट्रेसफुल टू स्क्रीन रिकॉर्ड, देन टू एडिट, देन टू क्रॉप देन टू पोस्ट। मतलब कि पोस्ट करना ऑब्वियसली इज नॉट स्ट्रेसफुल, लेकिन इट्स ओके। और मतलब कि यूजुअली ये होता है कि यू डू फाइंड एन एडिट ऑन दैट सॉन्ग। तो मुझे लगता है कि तो इस वजह से आई थिंक दैट इवन इफ यू वांट टू फैन गर्ल, जस्ट फैन गर्ल, मतलब कि until and unless it's giving you pleasure। जब वो चीज़ स्ट्रेस बन जाए ना कि नो यू आई हैव टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेंड, नो आई हैव टू वॉच द शो इवन दो आई डोंट लाइक the script of it, or even though the genre is not something that is of my taste। मतलब कि अगर मैंने एक एक्टर को
रोमांस में देखा है तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं उसकी एक्शन मूवी भी देखूँ, क्योंकि मुझे एक्शन नहीं पसंद। तो मुझे नहीं लगता कि यू नीड टू वॉच और के मतलब कि नहीं मेरा एक्टर है, मुझे इसको सपोर्ट करना है। इट्स ओके, मतलब कि obviously it's nice to support people, but you have a life of your own, you have a career of your own, so support yourself. They backed the show, so it's okay, they'll get another show inshallah. Lekin you don't need to be like, oh, I have to support it, or I have to watch it, or I have to participate in the trend. It's fine if it's good, it'll trend itself. You won't need to go and trend for it या tweet for it if you don't like about it. जिसको पसंद है वो उसके बारे में ट्वीट करेगा। तो मुझे लगता है कि फैन गर्ल अंटिल एंड अनलेस इट्स प्लीजिंग यू, डोंट गो आउट ऑफ द वे और मतलब कि टेक इट एज अ स्ट्रेस। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने किया हुआ है। जब आप बहुत ज़्यादा एक एक्टर के फैन गर्ल कर रहे होते हो ना, तो आपको लगता है इट्स योर जॉब टू पोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही डज। ही और शी अगर उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया तो मुझे उसके बारे में पोस्ट करना है, और मुझे फॉरन करना है। मतलब कि ये नहीं कि आई कैन वेट अ डे। अगर कोई एपिसोड आ रही है तो मुझे फॉरन वो एपिसोड देख के वो एपिसोड के बारे में पोस्ट करना है और उसके रिव्यूज़ करने हैं। और मतलब कि आप इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हो कि आप कहते हो कि नहीं मुझे उसी वक्त करना है, वरना आई एम नॉट अ फैन। अगर मतलब कि अगर आप मतलब कि इट्स ओके टू टेक अ डे, टेक टू मुझे इवन अगर मेरी जब पॉडकास्ट आती है और मैं पोस्ट करती हूँ तो मुझे कोई कहता है ना कि ओ आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ या आई वांट टू मतलब कि लिसन टू इट, तो मैं कहती हूँ कि यार इट्स ओके, मतलब कि यू डोंट नीड टू लिसन टू इट राइट नाउ, इट्स अवेलेबल, यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम। और इसलिए मुझे लगता है कि यू डोंट नीड टू स्ट्रेस योर सेल्फ अबाउट एन एक्टर हु हैव द प्रोजेक्ट, तो उसकी रोजी लगी हुई है तो ये मतलब कि और इट्स मतलब कि इट्स नॉट योर जॉब टू सपोर्ट एनीथिंग। अगर वो हाँ अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर अपने फैंस को पैसे देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यू नीड टू कोई आपके एक्टर ने स्टोरी पोस्ट की है तो यू नीड टू ट्वीट अबाउट इट, या यू नीड टू नो कि यार मतलब कि ये एक्टर कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। विच इज़ वाई मतलब कि इवन व्हेन आई वाज टेलिंग अबाउट बीटीएस आई अडोर देम सो मच, लेकिन आई देयर सो मच कंटेंट ऑफ देम, मतलब कि इतना उनके बारे में है और इतना है कि आई कैन नॉट कीप इन कॉन्टैक्ट विद इट। तो मुझे पता है कि मैं देख नहीं सकती, तो मैं सारा देखती नहीं हूँ, ये भी देखूँ वो भी देखूँ। तो इफ समथिंग इज एक्चुअली, लेकिन ऑब्वियसली मतलब कि कभी कभी मैं देख लेती हूँ क्योंकि इट्स गिविंग प्लेजर, लेकिन कभी कभी मैं नहीं देखती। जैसे उनके बहुत से एपिसोड्स आते हैं और मैं देख रही होती हूँ, या कल जैसे मतलब कि जिमिन का गाना आया है तो आई कुडंट लिसन टू इट। हालांकि जब मैं उठी थी तो वो आया हुआ था, रिलीज हुआ हुआ था, लेकिन मैंने रात को लेट नाइट जाके देखा। और मतलब कि और आई डोंट नीड टू लव समथिंग जस्ट बिकॉज कि इस ये बस इसने की है तो बस मुझे ये चीज़ पसंद, मुझे मुझे मतलब कि इट शुड बी माई फेवरेट। नो, इट्स ओके इफ इट्स नॉट योर फेवरेट, और इफ यू डोंट लाइक, और इफ इट्स नॉट योर टेस्ट, मतलब कि इट्स ओके फाइन। you don't need to watch it और मतलब कि talk about it, मतलब कि it's मुझे I don't know how to tell it, लेकिन ना I मतलब कि really मतलब कि irks me seeing मतलब कि fan girls who are मतलब कि hyping every bare minimum thing their actor is doing, मतलब कि you don't need to do it। और sometimes आपका दिल से मतलब कि कभी obviously if something is giving you happiness तो I understand, मतलब कि मैं ये नहीं कहती कि ना करो, लेकिन I do know a lot of people who take it as a pressure and stress and have this like मतलब कि the stress they themselves created for themselves के themselves, लेकिन they have this थिंग दे क्रिएटेड फॉर देमसेल्फ के अगर मेरे एक्टर ने इंस्टाग्राम पोस्ट की है तो मुझे फ़ौरन देखना है, और मतलब कि आई हैव टू हैव द नोटिफिकेशन ऑन, क्योंकि मुझे फ़ौरन देखना है, देन आई हैव टू पोस्ट अबाउट इट और टॉक अबाउट इट। या फिर कोई मेरे फेवरेट एक्टर की ड्रामा आया तो मुझे फ़ौरन उसकी एपिसोड देखनी है। तो मुझे नहीं लगता कि दिस शुड बी अ थिंग, और मुझे मतलब कि आपको उस टाइम रियलाइज नहीं होता, लेकिन बाद में लुकिंग बैक मतलब कि आपको पता लगता है कि वो सो अनहेल्दी, 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 इट वाज अफेक्टिंग माय पीस। और और मतलब कि इवन मतलब कि व्हेन समवन कॉल्स आउट योर एक्टर इट अफेक्ट्स योर पीस, तो आप अपने आप को इतना अनबॉदर्ड रखो कि इवन अगर आपको वो एक्टर पसंद भी है या उसने कोई गलत काम किया या कोई उसको कॉल आउट करे, तो आपका वो आपको एंग्जाइटी ना हो उस चीज़ की कि यार ये क्यों करें। एंड दैट्स अ रियल थिंग। मुझे लगता है कि जो मेरे अगर इन रियल लाइफ लोग सुन रहे हैं दे वॉन्ट रिलेट टू इट, बट अ लॉट ऑफ इंटरनेट फ्रेंड्स वुड रिलेट टू इट, क्योंकि मैं ज़्यादातर मिली ही लोगों से स्टैंड ट्विटर के थ्रू हूँ। तो मुझे लगता है कि इट्स अ रियल थिंग एंड आई हैव सीन, मतलब कि मेरी अपनी बहन है, शी इज़ ऑन स्टैंड ट्विटर, शी जस्ट रिसेंटली जॉइन स्टैंड ट्विटर, तो शी इज़ लाइक बट दैट मेक्स मी हैप्पी। मैंने कहा लेकिन दैट इज़ इफेक्टिंग योर मेंटल पीस,
कि if someone is calling out the show you like, या you are calling out some show, or someone is मतलब कि you are having a war with some other fandom on Twitter, it's affecting your mental peace. तो don't मतलब कि don't go on that space. मैं मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, लेकिन अब मैंने कि ये चीज़ कर ली अपने लिए कि if I like something, if I like a show, or if I really enjoy something, maybe I'll tweet about it, और मतलब कि या फिर एक दो बार कर दूंगी, या I will मतलब कि लेकिन I'll do if this is it's giving me pleasure. I don't need to know every single thing. Yeah, I don't need to force myself into watching something and tweeting something, or मतलब कि if I don't want to. तो I hope that makes sense for someone, क्योंकि that's a real thing and I wanted to talk about it, and I want to talk more about it, लेकिन I would love to have a guest जो कि उसी स्टैंड ट्विटर से निकला हो, and they could share their two piece about it. तो दूसरी बात ये है कि you can't really keep being a fangirl for the rest of your life. There will be a time you will be over by them, या he or she या them. तो मतलब कि तो डोंट गो इनटू दैट मच डेप्थ के बंदा बाद में मतलब कि कभी कभी होता है आप इतना ऑब्सेस्ड होते हैं ना उससे इस टाइम कि आपको रियलाइज नहीं होता, तो कुछ अरसे बाद फिर जब आप उस चीज से निकल आते हो ना, तो आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली बोल रहे होते हैं हाँ तुम्हें याद है, यू आर लाइक नो नो बस करो, आई एम मतलब कि इट गेट्स एम्बेरसिंग फॉर यू कि यू वर दैट मच इन लव विद एन एक्टर और एक्ट्रेस के मतलब कि तुम पागल हुई हुई थी, तो फिर आपके लिए वो चीज़ बहुत एम्बेरसिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मॉडरेट लेवल पे एक चीज़ पसंद करनी चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। द आयरनी ऑफ मी सेइंग दिस व्हेन आई हैव फैनगर्ल्ड माय होल लाइफ, लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूँ ताकि आप मेरी तरह अपना टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन मैंने भी इतना नहीं मतलब कि किया, मतलब कि आई हैव मुझे लगता है कि मतलब कि आई स्टार्टेड बीइंग अ फैन गर्ल व्हेन आई वाज 14, और मैंने 22 ईयर्स तक की है, और आई हैव फैन गर्ल लाइक मल्टीपल शोज और इंडस्ट्रीज और हर चीज़ की है। लेकिन अब आके आई एम एट द स्टेज ऑफ माई लाइफ व्हेन आई कंज्यूम मोर कंटेंट, आई वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम एट होम, तो कुछ तो एंटरटेनमेंट करनी है। विच इज़ वी गोना टॉक अबाउट मतलब कि लेटर ऑन के कंटेंट मुझे कैसा पसंद है या क्या देखना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स। लेकिन जो है आई डू वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट, लेकिन आई जस्ट एंजॉय इट कंटेंट की हद तक। I do if I don't like something, I don't need to tweet about it or give a review. If I really like something, तो I'll tweet about it, but then I'll forget it. मतलब कि उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ठीक है शो को शो की हद तक देखो, मतलब कि या ठीक, तो उससे ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में। And don't ship couples. दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन हाँ, और मुझे और मैंने देखा है, और मतलब कि देखा भी है और किया भी है। जब आप जब आप किसी एक्टर और एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा शिप करने लग जाओ ना, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, तो अगर वो शिप सेल ना करे या सेल होके फिर सिंक कर जाए, जो कि मेरी शिप की हुई है, तो फिर बहुत दुख होता है, बंदा बहुत इफेक्ट हो जाता है उस चीज़ से। तो डोंट लेट योर सेल्फ बी इफेक्टेड बाय अ थिंग दैट यू स्टार्टेड टू watch as a pleasure, मतलब कि don't do that to yourself. It's harming, it's um mentally it destroys your mental peace पीस। तो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। बस एक चीज़ को ना एक चीज़ की हद तक बस खुश रहो। इफ़ यू लाइक मेकिंग एडिट्स तो बनाओ, लेकिन मतलब कि वो भी तब तक करो व्हेन इट्स गिविंग यू प्लेजर। अगर वो आपके लिए एंग्जाइटी का करिए कि यार नहीं मैंने इतने अरसे से एडिट अपलोड नहीं किया, मतलब कि इफ़ योर होल लाइफ स्टार्ट्स डिपेंडिंग ऑन इट, तो यार मतलब मत करो, मतलब कि गेट आउट ऑफ इट। और मैं मेरी बहन है जैसे, शी इज़ इन कॉलेज, तो मैं उसको हमेशा समझाती हूँ कि उसके बोर्ड एग्जाम्स है, तो मैं उसको हमेशा समझाती हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड व्हेन शी वेक्स अप ट्विटर इज द फर्स्ट थिंग शी चेक्स के अच्छा क्या हुआ, कुछ हो तो नहीं गया, जब वो घर आती है तो मैंने उसको कहा है कि यू डोंट नीड टू नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट दिस मैन और वुमेन और दिस शो, and it's okay if you stop watching that show and then continue the episodes after your exams, क्योंकि I know for the fact that you're just watching that show for the sake कि यार I want to be watch it as soon as the episode publishes, ताकि मैं इसके बारे में ट्वीट कर सकूँ और मेरा फैन होने का हक पूरा हो जाए। मतलब कि नो दैट्स नॉट मतलब कि द लाइफ यू शुड बी लिविंग। यू हैव अ होल करियर ऑफ योर ओन, यू शुड फोकस ऑन दैट। मैं स्पेशली जब मैं यूनिवर्सिटी में चली गई थी ना, तो मेरी फैन गर्लिंग बहुत कम हो गई थी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी एक अपनी नेटफ्लिक्स मूवी चल रही थी, तो
मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में, या उधर इतना ड्रामा हो रहा था कि मुझे कोई कंटेंट या कोई एक्टर एक्ट्रेस देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मतलब कि सामने रियल लाइफ एग्जांपल्स इतनी ज़्यादा थी। लाइक आई एम इन माई स्टोर रूम राइट नाउ, और मैंने एकदम से ऊपर देखा तो देयर इज दिस बॉक्स जो कि किसी वक्त गिर सकता है और मेरे सर पे गिर सकता है। तो मतलब कि इफ मतलब कि अगर ऐसा हो गया तो आई विल नॉट, अगर मैं मर गई तो मैं यही बोल देती हूँ कि यार प्लीज इसको अपलोड कर देना, लेकिन आई वॉन्ट डाई। लेकिन अगर मेरा सर को कुछ हो गया तो आई वॉन्ट कट इट, लाइक आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्सपीरियंस मतलब कि द रियल थिंग्स। अच्छा, सो व्हाट वेयर वी वर, हाँ मतलब कि तो मैंने ना मेरी, और अच्छा ऑल्सो मतलब कि दैट वुड बी अ शॉकर शॉकर फॉर सम पीपल, लेकिन ग्रोइंग अप आई डिड नॉट हैड इंटरनेट इन होम। इंटरनेट वाज कंसिडर्ड एज अ लग्जरी कोविड से पहले टाइम। तो आई डिड नॉट हैड इंटरनेट, मतलब कि मेरे पास, हमारे पास कभी होता था कभी नहीं होता, ऑन एंड ऑफ होता था, क्योंकि इट वाज कंसिडर्ड एज अ लग्जरी। तो इट वाज नॉट समथिंग दैट माय पेरेंट्स थिंक दैट वी नेसेसरली न्यू। तो इस वजह से, क्योंकि इंटरनेट नहीं था तो मैं देखती ही टीवी थी, तो मैंने जितना भी अपने अर्ली टीन्स में या अर्ली एज में कंटेंट देखा हुआ है ना, वो मैंने वो देखा हुआ है जो टीवी पे लगता था। तो इस वजह से जब आपके पास इंटरनेट कंजप्शन कम हो रही है तो आई यूज टू बाय पैकेज, मतलब कि फिर मैं पैक, मतलब कि ये नहीं है कि मैंने इंटरनेट के बगैर अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, मैं पैकेज ले लेती थी। लेकिन पैकेज, मोबाइल डेटा पैकेज में ये होता है कि आपके पास लिमिटेड होता है, तो यू कांट रियली वॉच अ नेटफ्लिक्स सीजन और इवन अ मूवी। हम लोग क्या करते थे, हम लोग डाउन, मैं यूनिवर्सिटी में करती थी, इवन मैं यूनिवर्सिटी में, मेरे पास पहले 2 साल मतलब कि मेरे घर में वाईफाई नहीं था। मैं पैकेज ले लेती थी बट आई डोंट यूज टू हैव वाईफाई। तो यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली नेट होता था, तो मुझे याद है मैं वीकेंड पे ना सारे यूट्यूबर्स की ना, क्योंकि यूट्यूबर में ये है कि दे आर ऑब्वियसली एंटरटेनिंग एंड दे आर मच मोर ईजियर टू वॉच, क्योंकि दे डोंट टेक अ लॉट ऑफ माइंड। तो आप यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल टाइम गुजारे हो, तो ऊपर से आप एक सीजन देख लो, क्योंकि आपके पास अटेंशन स्पैम भी नहीं होता उस टाइम कि आप कुछ देखो। तो मैंने अपने सारा मतलब कि स्टूडेंट लाइफ में मैंने यूट्यूब ही देखा वैसा था, क्योंकि इट्स मच मोर आई थिंक प्रोडक्टिव एंड ईजी टू वॉच। तो मैं ना जिस दिन फ्राइडे होता था ना, उस दिन बैठ के सारी यूनिवर्सिटी में ना वीडियोस डाउनलोड करती थी और फिर मैं वो पूरे वीकेंड देखती थी। तो मुझे लगता है कि ग्रोइंग अप, बिकॉज आई डोंट हैव हैड अ लॉट ऑफ कंटेंट, तो मतलब कि और आई जस्ट स्टार्टेड, और क्योंकि अब आई हैव द privilege to work from home and I do have a lot of time, और आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ, और अब यूनिवर्सिटी जैसी जगह नहीं है मेरे पास जहाँ पे इन रियल लाइफ इतने ड्रामे हो रहे हो, तो फिर आई नीड टू rely on some sort of fictional couples, fictional ships or fictional man or woman to have that entertainment. So अब I do consume a lot of content. तो अब ना, अब जो है ना, आई एम टर्निंग 23 वेरी सून, और मुझे लगता है कि 22 23 इज अ वेरी लाइक, मतलब कि अच्छी एज है, मतलब कि इट्स नॉट, यू आर यंग बट यू आर नॉट वेरी यंग एंड पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी मेच्योर एंड ऑब्वियसली यू पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी एन एडल्ट। तो मुझे ना, इवन दो आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट नाउ देन आई यूज टू, व्हेन आई एक्चुअली शुड हैव व्हेन आई वाज अ टीनेज, मतलब कि, लेकिन अब आई एम सो स्पेसिफिक अबाउट द कंटेंट आई वॉच, क्योंकि आई वांट, मतलब कि मुझे है कि मैं जो भी चीज़ देख रही हूँ ना, दैट इज गिविंग मी समथिंग। Or I don't know how to explain this. I know a lot of people watch things just solely to get entertainment and pleasure, लेकिन मुझे लगता है कि even if something is giving you pleasure, तो उसकी writing और उसकी script या उसके character में कुछ ऐसा तो है ना कि आपको वो चीज़ pleasure मत करिए। मुझे है कि if I am watching something and if I am reading something and I do not get anything at the end, मतलब कि there is nothing that added in my personality or the way I think, and it did not added anything in the way I think, तो मुझे लगता है उसको उस चीज़ देखने और सोचने का या उस चीज़ को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे कल मैंने जो मतलब कि द मूवी देखी, द मूवी कल जो मैंने मूवी देखी प्राइड एंड प्री व्हाटएवर, पी व्हाटएवर, मतलब आई कैन नॉट, मुझे प्रेजुडिस, it takes me a while to remember the pronunciation of it and then to say, तो मैं एकदम से ना कह नहीं सकती। लेकिन जैसे कल मैंने वो मूवी देखी, तो इट वाज अ स्लो बर्न सटल रोमांस, और मतलब के तो मुझे लगता है कि उसमें आपको मतलब, और मुझे लगता है कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट इज दैट के, नो आई डिड नॉट, व्हाट डिड आई लर्न, बट इट वाज अ गुड वॉच।
No, I did, मतलब कि I don't know how to explain it, but it was about human emotion or the love you feel for someone. और मतलब कि the fact that the मतलब कि जो movie का title है pride was for the man, or the prejudice whatever that word is, that was for the female woman who used to think too high, that the she used to think that the man thinks too high for himself, and she used to judge him on the basis of his status or race or whatever. तो मुझे लगता है कि it was a मतलब कि it was a good, मुझे लगता है कि even उसका novel I think is so good, but even as a film it was so good, and it did give me मतलब कि I maybe I won't explain it right now क्योंकि I just watched it, लेकिन मुझे लगता है कि it was about मतलब कि real emotions, या फिर it was feminist, मतलब कि novel feminist था तो obviously movie feminist थी, तो it somehow depicts woman empowerment, or that you don't need to be a shy girl to be, मतलब कि a shy girl or a girl that society expects you to be to वो अच्छा मुझे लगता है कि अब मतलब कि सोसाइटी भी चेंज हो गई है, लेकिन you don't need to be that to amuse a man, or you मतलब, और मुझे लगता है there's a lot of things that you मुझे लगता है I need time to grasp in that movie and think about it. मैंने बस कल देखी and it takes me a while to, but the romance in it was so subtle. और मैंने पहले भी बताया कि मुझे ज़्यादा physical intimacy नहीं पसंद, तो there's so much you can depict from things that are unsaid, और द रोमांस दैट इज अनसेड, और दैट मतलब कि जो कि एक तो जो एंड पे जो सीन, द क्लाइमेक्स सीन, the scene before the climax scene, but I call it the climax scene, जिसमें वो लड़का आता है and he like tells her that he loves her and he basically wants to spend his whole life with her. उसमें जैसे वो उसको confess करता है, it was so beautiful the way मुझे लगता है that was the most beautiful confession I have ever seen in a movie. And the way he tells her कि if you feel the way you felt when I first confessed in front of you, you will not hear a word for me for the rest of my life. Lekin if your feelings have changed, then I want to tell you that I am in love with you and I want to spend. I should read out that whole thing क्योंकि it was so good. Let me see if मैंने ना Instagram पे post किया था. Wish if you are not following me on Instagram, what are you doing? It's the brown girl rants. तो मुझे लगता है कि ना दैट मूवी मतलब कि it was not like मुझे कुछ साइंटिफिक चीज़ पता लगी है या मुझे कुछ बहुत ही पता लगा है, बट इट टोल्ड मी अबाउट द ह्यूमन इमोशन और द मीनिंग ऑफ रोमांस, और व्हाट मतलब के, और मतलब कि आई वॉच्ड old मतलब कि I watched a movie for a culture which is not my culture and which is not the culture I have been taught, so it was for some, it was good to see मतलब कि what happened, like what all English um what old English, अब मैं क्या मतलब मुझे नहीं समझ आई हाउ टू एक्सप्लेन इट, लेकिन व्हाट इट वाज लाइक, या मतलब कि क्योंकि इट वाज अ पीरियड प्ले, तो मुझे लगता है पीरियड प्लेज आर मतलब कि मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू रियली वॉच थिंग्स और दैट आर क्लोजर टू लिटरेचर टू वॉच, और यू वांट मतलब कि ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन रीड, लेकिन इफ यू वांट अ विजनरी समथिंग विजुअल ऑफ समथिंग, तो मुझे लगता है कि यू शुड लाइक रियली कंसिडर वॉचिंग पीरियड प्लेस. तो मुझे लगता है इट वाज नाइस टू नो के हाउ इट वाज दैट टाइम इन दैट एरिया, या हाउ पीपल यूज्ड टू स्पीक, या इवन द मतलब कि इट्स सो मतलब कि इवन मुझे लगता है कि अगर मैं बुक पढ़ूंगी तो ज़्यादा लाइक इवन द डायलॉग्स आई वॉच्ड इट विद सबटाइटल्स, क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्सेंट की ना समझ आ रही थी, और कुछ वर्ड्स भी थे अंदर जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको वैलिडेट करना चाहूँगी यहाँ पे कि इट्स कम्प्लीटली फाइन टू वॉच एन इंग्लिश मूवी विद इंग्लिश सबटाइटल्स, मतलब कि इट्स फाइन. मैं भी ये करती हूँ, और भी जो करता है इट्स कम्प्लीटली फाइन. मतलब डोंट, इट्स नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज अगेन, और मतलब कि आपको हर किसी का एक्सेंट नहीं समझ आता, तो यू डोंट नीड टू लाइक, और मुझे मुझे पता है देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु मतलब के हु थिंक कि ओ तुम सबटाइटल्स के साथ देख रही हो, व्हाई. नो, इट्स फाइन इफ यू आर वाचिंग इट विद सबटाइटल्स, क्योंकि दैट्स नॉट द लैंग्वेज योर मदर लैंग्वेज. इवन अगर आप उर्दू भी कोई देख रहे हो नीचे उर्दू के सबटाइटल्स लगाए हुए, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मतलब कि हाँ, तो मुझे लगता है कि इट वाज मतलब कि डायलॉग जो थे दैट वर रियली लाइक
there was a lot of you can depict from one sentence that someone says or one scene. उसमें दिखाते हैं कि उसका एक होता है जो लड़की होती है फीमेल लीड, उसकी दोस्त होती है, और देयर इज अ मैन हु वांट्स टू मैरी द मतलब कि फीमेल लीड, लेकिन शी टर्न्स हिम डाउन, तो वो उस लड़की को करता है और दे गेट मैरिड। और वो उस लड़की को कहती है कि यार व्हाई यू आर मतलब कि गेटिंग मैरिड टू हिम, यू नो ही इज अ फुलिश मैन, और ये वो फलां फलां। तो वो कहती है कि दैट्स नॉट इट, मतलब कि आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग दिस लाइफ, और मतलब कि आई विल be a mistress and I'll be in a house and live a respectable life or ye wo, and you shouldn't judge me for that or look to me for that, which is मतलब कि which is very beautiful क्योंकि it showed कि not everyone have the same like vision for someone or vision for life, मतलब कि if I turn down something it doesn't mean it should be meaningless for everyone else। तो मुझे लगता है there were a lot of lessons uh, you can you could you could depict from that मतलब के movie, and I like movies like this क्योंकि it's मुझे मुझे पता है कि कोई कहेगा कि oh no there it's not मतलब कि necessary that there should be something scientific or something बहुत ही intelligent और smart जो कि आप वो, क्योंकि obviously वो ज़्यादा documentaries में होता है जो आप एक मूवी से करो, कभी कभी ऐसी मूवीज या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ मूवीज भी आपको बहुत कुछ बता देंगे। जैसे मैं कोरियन ड्रामास की बात कर रही हूँ, तो आई वॉच विंसेंजो, इट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग, एंड आई ऑनेस्टली अब मैं जब ड्रामास देखती हूँ ना तो आई मोस्टली प्रेफर वॉचिंग थ्रिलर, क्योंकि मुझे लगता है उसमें राइटिंग बहुत इंटेलिजेंट होती है, द करेक्टर आर सो वाइज एंड सो स्मार्ट। तो अगर आपके सामने कोई या फिर जैसे मैंने जो द जेन ऑस्टिन नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस आई शुड नॉट, मैंने इस के बारे में बात ही नहीं करनी क्योंकि आई कैन नॉट, मुझे लगता है कि आई एम प्रोनाउंसिंग इट वेल बट आई एम प्रोनाउंसिंग इट मतलब कि मैं बहुत डर के प्रोनाउंस कर रही हूँ व्हिच आई डोंट नो, मुझे लगता है मेरे पे कोई हंस रहा होगा एवरी टाइम आई एम सेइंग दिस, तो इस वजह से। लेकिन मुझे लगता है उसमें जैसे जो फीमेल लीड थी या जो मेल लीड थी, देयर वाज अ लॉट टू ग्रास्प इन फ्रॉम दैट कैरेक्टर। तो जैसे मैं विंसेंजो की बात कर रही हूँ, तो इट वाज सच एन इंटेलिजेंट राइटिंग और द कैरेक्टर वर सो गुड कि आई मतलब कि आई लव्ड एंड आई टुक सम थिंग्स कि यार मतलब दे आर सो वाइज, और मतलब कि ये करें ये वो करें, इट वाज अ क्राइम थ्रिलर। और आई नेवर लव्ड, मतलब कि मैं अपने भाई को भी यही बता रही थी कि आई थॉट आई नेवर लव्ड एक्शन, लेकिन जब कोई इतना वेल रिटन चीज हो ना या जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी हो, उसमें फिर आपको एक्शन देखने का भी मजा आता है। या फिर आपको मतलब कि कोई बहुत वाइज कैरेक्टर है जो कि जैसे मर्डर मिस्ट्री होती है, मैंने एक मूवी देखी थी जिसका भी सेकंड पार्ट आया हुआ है, मैंने नहीं देखा, नाइव्स आउट, उसमें जो डिटेक्टिव मतलब कि जो ऐसे मर्डर मिस्ट्री वाले होते हैं जिनमें दैट इन्वॉल्व्स डिटेक्टिव एंड मिस्ट्री और ये वो मिस्ट्री थ्रिलर जो होते हैं, उनमें मतलब कि देयर इज मतलब कि जो स्मार्ट स्मार्ट कैरेक्टर्स होते हैं, देयर इज अ लॉट टू मतलब कि गेट फ्रॉम देम, मतलब कि वो बहुत से ऐसे काम करते हैं या बहुत से ऐसी चीजें बोलते हैं that you are like oh he said something very wise, so I think that there should be, then I watched my liberation notes, मुझे लगता है that was a slice of life, मुझे लगता नहीं है मतलब कि that was a slice of life genre। तो उसमें दे मतलब कि taught a lot about मतलब कि उसमें they taught a lot about human emotion, love, or how adults मतलब कि adults who do not get married or are lonely, how it feels to be that, or how that मतलब कि there is a constant pressure for society from society about some things that you fail to मतलब कि you fail to you मतलब कि you fail to मतलब कि there is a pressure from society about certain things and you fail to like be that perfect example of things, लेकिन it's मतलब कि it tells how it is okay to be how life is or how to enjoy the little things, or मतलब कि there's a lot to get from that show or any show। तो मुझे लगता है कि even if whatever I read or I watch, क्योंकि और मुझे लगता है कि ना लोग people assume that if you're reading a book तो उसी से आपको सिर्फ जो है ना वो you can मतलब कि लर्न वाइज थिंग, मैंने कुलीन हूवर की बुक्स पढ़ी और मैं से आप कुछ अच्छा नहीं मतलब कि कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक इफ समवन रीड्स मतलब कि इफ समवन जस्ट वॉचेस अ लॉट ऑफ शोज तो इस ये बेवकूफ़ है, लेकिन क्योंकि ये देख रहा है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन मतलब कि गेट फ्रॉम शो, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू वॉच एंड व्हाट यू नॉट।
देन आई वॉच्ड, मतलब कि मैंने आजकल वो जो बहुत मतलब कि इट्स वेरी फेमस, मतलब कि वेडनेसडे, आई वॉच्ड वेडनेसडे, देयर इज अ लॉट टू गेट फ्रॉम दैट शो टू, मतलब कि इट्स न्यू, मतलब कि कॉन्सेप्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने आई हैवंट वॉच्ड हैरी पॉटर, मतलब कि रियली। तो और आई नो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इट्स, मतलब कि इट इज मतलब कि वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम इट, लेकिन फॉर मी इट वाज अ वेरी न्यू थिंग दैट, और मैं ना आई डोंट रियली वॉच horror movies too, क्योंकि that's another topic that I'll tell, क्योंकि I don't find pleasure in being scared। तो मेरे लिए वो सब, मतलब मेरे लिए वो शो, it was a very new thing और it was getting so hyped, तो मैंने कहा अच्छा देखती हूँ। तो it was not really a horror show, horror movie, horror drama, लेकिन आई थिंक देयर वाज अ लॉट, मतलब के ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स इन इट, और इवन उसमें, मतलब कि उसमें जो कैरेक्टर होते हैं, इवन दैट कैरेक्टर, मतलब के वाज वेरी गॉथिक, और जो इवन द विलन ऑफ, नॉट द विलन ऑफ द शो, लेकिन उसमें जो सेकंड जो, मतलब कि लीड होती है, और मुझे उसका नाम टोटली भूल गया, जो कि पहले नेगेटिव होती है और फिर वो उसका पॉजिटिव, मुझे लगता है उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, एंड देयर वाज समथिंग दैट got from the male main lead, or even the second lead that was her roommate. I think there's a lot of things that I got from her, because I think that I kind of resonated with the second lead of it more. तो मुझे लगता है कि वॉट एवर यू आर वॉचिंग, और यू डिसाइड टू वॉच, और यू आर रीडिंग, यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट द थिंग दैट, मतलब कि व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। या जब आप बंद करो, इवन इफ इट्स अ शो बेस्ड ऑन रोमांस, जैसे मैंने जो कल मूवी देखी है, इट्स मतलब कि इट्स नॉट रियली, फिर से वही बात है कि उसमें कोई ऐसा कुछ, मतलब कि नहीं है कि ओ इससे आपने क्या सीखा। इट्स नॉट अबाउट एनी सोशल इशू, जरूरी नहीं है कि आप कोई सोशल इशू का ड्रामा देखोगे तो ये आप कहोगे कि यार, मतलब हाँ, इससे मैंने सीखा है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इवन द थिंग्स, मतलब कि इवन विद, देयर आर थ्रिलर शोज़, या फिर देयर आर शोज़ अबाउट ह्यूमन इमोशन, जैसे पाकिस्तानी शो, मेरा फेवरेट शो है अलिफ। मुझे मतलब कि आई लव दैट शो, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तानी, मुझे लगता है पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शोज़, अगर उन्हें कुछ सिखाना होता है ना, या कुछ मतलब कि दे वांट टू टॉक इन डेप्थ, तो वो उसको ना सोशल इशू के बारे में बता देते हैं। तो मुझे लगता है इट डू नॉट नीड टू बी अ सोशल इशू शो और अ डॉक्यूमेंट्री फॉर यू टू लर्न समथिंग ऑफ इट। जैसे अलिफ शो, इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और इट टॉक्स अबाउट, मतलब कि a much more deeper meaning in human life, or a much more, it मतलब कि it talks about the things that are much deeper। I don't know how to explain it, लेकिन okay, I don't know if I should cut all of this, or like जहाँ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ, या आई शुड कीप इट इन, जैसे मैंने अभी पानी पिया है, तो किसी को पता लगे कि मैंने पानी पिया है, लेकिन अच्छा, सो वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब कि अलिफ। तो जैसे अलिफ है ना, दे टॉक्ड अबाउट द ह्यूमन, हाउ ह्यूमंस रिएक्ट ऑन थिंग्स, या ह्यूमन कनेक्शन विद गॉड, या इंसान की स्ट्रगल की, मतलब कि जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, वो मतलब कि कैसे कनेक्ट कर रहा है अल्लाह ताला से, या जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है, वो कैसे कनेक्ट कर रहा है अल्लाह ताला से, या दो लोगों को आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, या किस चीज़ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दैट शो इज़ गुड। और मतलब कि इवन, मतलब कि मुझे जब भी मैं अलिफ का नाम लेती हूँ ना, मुझे अहद वफ़ा याद आ जाते हैं, क्योंकि वो भी उसी टाइम पे चल रहा था। तो जैसे अहद वफ़ा चल रहा था, इट हैड टू, मतलब कि इट हैड आल्सो अ लॉट टू टेल, मतलब कि आप जब वो शो भी आपने आपने उसकी लास्ट एपिसोड देखी है, तो देयर वर थिंग्स दैट यू गॉट फ्रॉम दैट शो, बी इट अबाउट फ्रेंडशिप और अबाउट अ प्रोफेशन और अ करियर। तो आई लाइक व्हेन अ कैरेक्टर हैव समथिंग टू गिव यू, और अ शो हैव समथिंग टू गिव यू। द शो दैट डिड नॉट गिव एनीथिंग टू अस वाज और मुझे ये शो भी इसलिए याद आ गया क्योंकि वो भी तब साथ ही लगा था, वो मेरे पास तुम हो। तो दैट शो गेव नथिंग, मतलब it was intelligent writing, but there was so much things that were messed up, लेकिन मतलब कि sorry if I'm offending someone, क्योंकि उनका वो फेवरेट शो हो सकता है, लेकिन मतलब कि there were lot of dialogues जो मतलब even in that show there were some dialogues जो कि आप that were very thought provoking, लेकिन वो they were deeper down problematic, या उस शो का जो premises था that was not the best premises that you want to see or you want to know, or मतलब
आई पर्सनली डोंट वांट टू नो। और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि उसमें, क्योंकि मैं क्योंकि हो, हाँ मैं लड़की थी तो मैं देख नहीं सकती किसी और लड़की का नेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर not मतलब कि depicted the way they should have. And I personally would never watch a content जिसमें even लड़का भी जो है वो मतलब के even मतलब मुझे लगता है पाकिस्तानी ड्रामा, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे ड्रामा होते हैं जिनमें लड़का जो है वो मतलब के ही इज द वन हु चीट्स, मतलब कि लड़कों के ज्यादा ऐसे रोल होते हैं एंड देन गेट्स मैरिड टू समवन एल्स। लेकिन मैं लड़कों का भी वो नई शो देखना चाहूंगी क्योंकि मुझे आई डोंट वांट टू वॉच आई betrayal in मतलब कि I have been very like uh, मतलब कि आई इंटेंशनली डोंट वांट टू वॉच द शोज जिनमें बिट्रेयल हो, या जिनमें मतलब कि डोमेस्टिक अब्यूज हो, क्योंकि मतलब कि मुझे लगता है कि वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इट एंड वी डोंट वांट टू सी इट। वी नीड एंड वी शुड नो इनफ कि हम अगर ये चीज़ असल में हो रही है तो हम इस पे अपना ओपिनियन वॉइस कर सकें और इस चीज़ के बारे में वोकल हो सकें। लेकिन एज एन एंटरटेनमेंट, हाँ अगर मैं किसी मतलब कि अगर उसमें ज़्यादा फोकस उस लड़की पे है ना कि ओ मतलब कि दैट गर्ल या दैट गाय गॉट बिट्रेड एंड दिस इज हाउ ही मतलब कि गॉट ओवर बाय इट और आगे उसकी जर्नी है, तो आई कैन एक्सेप्ट इट। लेकिन द बिट्रेयल और द चीटिंग और द other मतलब कि negative thing being the premises of it or being the main topic of it is something that I do not want, personally do not want to see, and I would intentionally मतलब कि want watch a show that depicts that, even अगर उसके मतलब कि lesson उसका अच्छा ही है, लेकिन it is not something that I want to watch, I want my mind to go in that। मुझे लगता है there's a lot of beautiful things that a show could discuss, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना अभी हम जा रहे हैं शायद उस रास्ते पे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। बीच में बहुत अच्छे शोज कभी कभी आते हैं, बीच में कुछ बहुत मतलब के बुरे आ जाते हैं। तो और मतलब कि और इवन मुझे मुझे पता है कि हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसे शोज ज़रूर होते हैं, इसलिए इसलिए अगर मैं इवन अगर जब मैंने कोरियन शोज भी देखना शुरू किए तो मुझे बहुत लोग और शोज रिकमेंड करते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू वॉच अ शो दैट इज गुड। आई डोंट केयर व्हाट रीजन इट बिलोंग्स टू, अगर वो मतलब कि क्योंकि आई हर्ड अफगानी सिनेमा इज वेरी गुड, नॉट अफगानी, पता नहीं, अफगानी सिनेमा, देयर इज अ मूवी दैट दे मेड और मैं वो कब से सोच रही हूँ कि मैं देखूं। लेकिन आई नो कि बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके मतलब कि चाइनीज सिनेमा आई हैव हर्ड इज सो गुड। So I want to watch content, but I want to watch such characters or such movie जिनसे मुझे कुछ मिले। इवन इफ आई एम वॉचिंग एक्शन मूवी तो उसका कैरेक्टर इतना वेल रिटन या इतना स्मार्ट होना कि मैं उसका कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं उससे लूँ, और मतलब कि मैं जब घर जाऊँ तो मेरे पास कुछ कहने को हो। इवन अगर मैं सिनेमा में भी अगर कोई मूवी देखने जाती हूँ ना, मैंने वो मूवी बॉलीवुड मूवी देखी थी जब हैरी मेट सेजल, और वो इतनी बेकार मूवी थी ना, तो मैं घर जा रही थी तो आई फेल्ट सो सैड कि यार व्हाट डिड आई गेन फ्रॉम दैट वाचिंग दैट फिल्म। और मतलब कि देन आई मतलब कि फिर देन आई वेंट इन और आई वॉच्ड मतलब कि इंडियन मूवी ही, आई विल गिव एग्जांपल, मैंने वो देखी बजरंगी भाईजान सलमान खान की, दैट वाज अ गुड मूवी। तो उससे मतलब कि मुझे मतलब कि इट टोल्ड कि यार यू शुड बी काइंड और यू शुड बी फ्रेंडली और ये वो मतलब कि, तो मुझे लगता है कि देर और द कैरेक्टर ऑफ इट, द कैरेक्टर ऑफ सलमान खान, मतलब उसमें उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो, तो देर शुड बी मतलब कि इफ देर इज अ मूवी और इफ देर इज नो कैरेक्टर दैट डिडंट गिव यू एनीथिंग, दैट आई डोंट थिंक दैट उसका कोई फायदा हुआ है। मतलब कि देयर शुड बी अ कैरेक्टर दैट यू शुड बी ऑब्सेस्ड, नॉट ऑब्सेस्ड विद, दैट यू शुड लाइक और यू कैन मतलब कि रिलेट टू देम, और यू कैन मतलब कि इवन इफ यू डोंट रिलेट टू देम यू शुड मतलब कि be inspired from them. Even if you're not inspired from them, then there should be something in them that you admire or you like, and it's not something that necessarily you want in yourself, but you admire it or you will take some percentage of that character or it would inspire you। अब मैंने ना रूमी का नहीं, एक्चुअली रूमी की लाइफ पे बेस्ड मतलब कि मैंने ना वो मैंने स्पिरिचुअल नॉवेल्स इतने पढ़े हुए नहीं है विच वुड आई वुड लव टू रीड, क्योंकि I want to read मतलब कि more wise thing, I want to watch wise things that are wise, मतलब कि I really want to become wise। तो मैं ना पॉडकास्ट भी आजकल मतलब कि जब देखती हूँ ना तो मैं कोई ऐसी देख रही होती है कि मैं उससे ना कुछ लूँ, ठीक है, आई वांट टू नो अ गर्ल इज टॉकिंग अबाउट समथिंग, और मतलब कि इवन
जब जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि जब मेरी कोई पॉडकास्ट सुन के बैठे तो ये ना कहे कि ओ आई जस्ट वेस्टेड 1.5 hour of my life, like, or there was nothing I can get from it. तो मैं चाहती हूँ कि इवन अगर कोई मुझसे भी सुन रहे है ना, तो उसको कुछ ना कुछ मिले या उसके पास बताने को कुछ हो कि यार मतलब कि मैं कोई ऐसी नॉलेज किसी को दूं कि वो उसको वो काम आए आगे जाके। तो दिस इज समथिंग मतलब कि, और दिस इस वजह से मुझे भी ऐसी चीजें देखनी दैट वुड मेक मी वाइजर, या मुझे ऐसी चीजें पढ़नी है दैट वुड मेक मी वाइजर। सो आई रेड 40 रूल्स ऑफ लव, और उसमें जो है इतनी चीजें थी ना जो मैं अभी भी मतलब कि आई हाईलाइटेड दोस थिंग्स एंड आई रोट इट। मतलब कि और अभी भी मैं वो चीज़ें पढ़ती हूँ ना तो मुझे मज़ा आता है, क्योंकि देयर इज सो मच थिंग्स दैट इट डिपिक्ट्स। तो मुझे लगता है कि इफ देयर इज अ शो दैट्स डूइंग नथिंग ऑफ इट टू यू, तो आई पर्सनली वुड नॉट वांट टू वॉच दैट शो, स्पेशली अब, क्योंकि व्हेन द कंटेंट आई कंज्यूम इज द ओनली सोर्स ऑफ, ओनली तो नहीं, इज मोस्टली द मेजॉरिटी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट आई हैव। और इट्स द मतलब के दैट्स हाउ आई एम सीइंग द आउटर वर्ल्ड, क्योंकि आई डोंट मतलब के बाय मतलब के रीडिंग और वॉचिंग दोज शोज, दैट्स द मतलब के गेटवे कि मैं अपना जो है वो बाहर की दुनिया देख रही हूँ। तो मुझे ऐसी चीज़ देखनी है जिसकी वजह से मुझे मेंटली जो है वो कुछ ऐड हो रहा है, या मेरे अंदर ऐड हो रहा है, या इवन इफ इट्स अबाउट इट्स मतलब कि कम्प्लीटली रोमांटिक, तो मुझे मतलब कि मुझे कुछ ऐसा देखना है जिसमें एडिशन हो, मतलब कि जो भी मतलब कि मतलब कि इंसान के थॉट्स हैं इस बारे में, या बंदे की फीलिंग्स है, तो उसमें एक पॉजिटिव एडिशन हो। या जैसे आपको इतना अच्छा कैरेक्टर देखते हो एक बंदे का कि आप कहते हो कि यार मतलब कि वाओ, मतलब कि दिस इज हाउ आई वांट, मतलब कि इसकी ये आदत कितनी अच्छी थी, या ही वाज सच अ सॉफ्ट मेल लीड कि ना, दिस इज हाउ आई एक्सपेक्ट समवन हु आई विल गेट मैरिड टू, या हु इज मतलब के दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। आई थिंक आपकी कभी कभी एक्सपेक्टेशंस मतलब के नहीं मिलते, लेकिन मुझे लगता है इट्स नाइस टू वॉच पॉजिटिव गुड कैरेक्टर्स, और इवन नेगेटिव और इवन ग्रे कैरेक्टर्स, एंड मतलब के get something from that, or even watch a character development of something and मतलब कि learn something from it। तो मुझे लगता है there's always something you should depict from a movie or a book or a season you're watching, if I have explained it enough or well। मुझे मुझे हमेशा पॉडकास्ट के बाद लगता है कि यार मुझे ये भी बोलना चाहिए था, मुझे वो भी बोलना चाहिए था, बट दिस इज अ टॉपिक आई वुड कीप ऑन डिस्कसिंग, क्योंकि आई रियली लव टॉकिंग अबाउट इट। और व्हाट, हाँ, स्पीकिंग ऑफ बुक्स, पता नहीं क्या है मेरे साथ, मैं आई एम रीडिंग अ बुक नाउअडेज, और मुझे दैट बुक इज डूइंग नथिंग टू मी, और ना मेरा दिल चाह रहा है पढ़ने का, ना मतलब कि, तो मुझे शायद लग रहा है कि, और दैट बुक इज लाइक फुल मतलब कि रोमांस, और मुझे लगता था कि शायद ना विद विजुअली, जो मुझे विजुअली चीज़ देखनी है, आई वांट दैट टू बी अ लिटिल इंटेलिजेंट, और मे बी जो बुक मैंने पढ़नी है ना, और अगर वो फिक्शन है तो मे बी आई वांट इट टू बी सॉफ्ट एंड लाइट हार्टेड, ताकि मुझे पढ़ के मजा आए। लेकिन दैट बुक इज नॉट, तो आई डोंट नो इफ दैट्स माई प्रॉब्लम एंड आई शुड स्विच अप इन रीडिंग मोर इंटेलेक्चुअल थिंग्स, क्योंकि मुझे आई वांट मतलब एज आई सेड आई वांट टू बी वाइज, और आई वांट टू रीड वाइज थिंग्स, और आई वांट टू learn from the books or the content I am watching. I want something to grasp it, and that book is not giving anything to me, or I couldn't connect to the character। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मतलब I should मतलब switch to the books that are more about life or emotions, or और I should मतलब कि रीड लिटरेचर, बेशक इंग्लिश हो उर्दू हो, मुझे मतलब मुझे है कि मुझे लिटरेचर को थोड़ा और पढ़ना चाहिए, और मुझे पता होना चाहिए। आई वांट टू गेन मोर नॉलेज अबाउट थिंग्स दैट आर रियली मतलब कि दैट आई कुड लिव विदाउट नोइंग, बट आई वांट टू नो, एंड इट्स नॉट लाइक कि मुझे आगे बताना है किसी को, ये करना है। आई वुड लव टू शेयर इट ऑन द पॉडकास्ट, बट आई वांटेड इट फॉर माई ओन सोल, मतलब कि आई एम इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई एम क्रेविंग टू लर्न मोर, एंड आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू टीच मी, आई वांट टू फाइंड इट ऑन माई ओन। मुझे अगर बुक पढ़नी, ऑब्वियसली बुक का ऑथर आपको टीच करे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे फिजिकली आके, कोई बंदा आके बताए कि ओ ये। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद मतलब कि वो चीज़ें लर्न करूँ, और मैं खुद उन चीज़ों के बारे में डिस्कवर करूँ। कोई अच्छा शो हो,
क्योंकि ऑल्सो मतलब कि अगर कोई कोई चीज़ रिकमेंड कर देना और मैं वो ना पढूँ तो मुझे बहुत भी बुरा लगता है। द बुक आई एम रीडिंग इज़ रिकमेंडेड टू मी एंड आई एम लाइक व्हाई आई एम नॉट लाइकिंग इट दैट मच, क्योंकि आई फील बैड और आई डोंट और आई एम नॉट द पर्सन हू लीव्स बुक्स और शो मिडवे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर ना, लेकिन इवन दो आई लीव दिस बुक और आई वॉन्ट रीड इट अगेन, मेरे मतलब कि कभी ज़हन नहीं आएगा कि यार मैंने पढ़ी नहीं। आई एम नॉट इवन क्यूरियस अबाउट इट कि ओह! आगे क्या हो रहा है। तो आई वुड लव टू मतलब कि रीड लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। आई वुड लव टू वॉच थिंग्स दैट आर गुड एंड इंटेलिजेंट, और मतलब कि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं क्या देखूं क्या नहीं। कभी कभी मुझे मतलब कि आई डोंट रियली वॉच रिकमेंडेड स्टफ, क्योंकि ना आई लव मतलब कि समटाइम्स आई डू आस्क फॉर रिकमेंडेशन, लेकिन ना मैं खुद कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करती कि यार तुम ये ज़रूर देखो, क्योंकि अगर मुझे एक शो पसंद है तो मैं कहूँ कि नहीं नहीं यार तुम ज़रूर देखो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत चीज़ पसंद है जो कहते हैं नहीं नहीं तुम ज़रूर देखो, तुम ज़रूर पढ़ो। मुझे लगता है आपको किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, लेट देम डिस्कवर ऑन देयर ओन। और मतलब कि इवन मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगला बंदा उस चीज़ को वैसे पसंद नहीं कर पाता कि अगर आप उस इंसान को ऐसा फोर्स कर रहे हो। तो समटाइम्स आई लाइक सर्चिंग ऑन माई ओन, और थे मतलब कि और समटाइम्स आई डू लव टू गेट रिकमेंडेड कि ये पढ़ो वो पढ़ो या ये देखो वो देखो। लेकिन मोस्टली मुझे तब बहुत मज़ा आता है जब मैं खुद कोई चीज़ डिस्कवर करूँ और उसको पढूँ या देखूँ एंड इट टर्न्स आउट टू बी ग्रेट, और मतलब कि इट मेक्स मी सो हैप्पी। तो दिस वाज़ समथिंग, दिस मतलब कि आई टॉक्ड अ लॉट। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मेरा आज कोई मतलब कि जैसे पिछली बार मैंने सोचा था कि ओह! मैंने इस बारे में बात करनी है, उस बारे में बात करनी है, इस बार मैंने सोचा हुआ नहीं था। मैंने बस कहा था कि हाँ, मैं इस बारे में बात करूँगी और देखूँगी हाउ इट गोज़। लेकिन मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा बोल गई हूँ, और बीच में मुझे लगता है इस एपिसोड में ना मैं सबसे ज़्यादा फंबल ही मैंने सबसे ज़्यादा इस एपिसोड में की है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं, लेकिन मतलब कि इतना, लेकिन मुझे लगता है आई सेड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू, सो आई होप दैट मेक्स अप फॉर इट। और आई एम नॉट गोना एडिट दिस अ लॉट, क्योंकि मुझे ना मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ कभी-कभी सुन के कि यार ये तो मैंने बोंगी मार दी है। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स ओके, मतलब कि वी आर फाइन। द थिंग आई रियली वांट टू हैव इज़ अ न्यू माइक, क्योंकि मतलब कि मैं ना दूसरों की जब पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार इनकी आवाज़ कितनी अच्छी है। और मतलब जब मैं अपनी आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे बिल्कुल बहुत अनोइंग लगती है, और मुझे लगता है कि मे बी इफ़ देयर इज़ अ माइक जिसमें थोड़ी नॉइज़ कैंसलेशन इर्द-गिर्द की हो, तो उसमें शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगे। मतलब कि जो अच्छी हाई क्वालिटी पॉडकास्ट्स हैं, उनमें कितनी अच्छी आवाज़ आती है। और डू पीपल ऑटो ट्यून देयर ओन वॉइस? मतलब कि हाउ कैन यू ऑटो ट्यून? मतलब कि आई वुड लव टू ऑटो ट्यून माय वॉइस टू मेक इट साउंड गुड फॉर द पीपल, इट्स फाइन। लेकिन दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो मैं बाद में कुछ ऐसा करूँगी कि मुझे मतलब कि याद आएगा और मैं कहूँगी कि यार मुझे ये भी कहना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, वी विल डू अनदर एपिसोड। तो आई होप यू लर्न from something from it, or I hope मतलब कि not learn something from it, I hope it was thought provoking for you, which is मेरा मकसद भी यही है कि मैं जो भी कंटेंट देख रही हूँ, सुन रही हूँ या पढ़ रही हूँ, मैंने सब यही बताया कि मेरे लिए वो थॉट प्रोवोकिंग हो, कि मैं कहूँ कि यार हाँ ये हुआ है, तो मैं फिर उसके बारे में सोचूं, एंड देयर इज अ लॉट टू डिपिक्ट आउट ऑफ इट। Though I hope this was for you. I hope if you're a stan or a fangirl or someone, so this cleared out a little bit things for you, and please let me know your feedback. मैं इतना enjoy करती हूँ ना, मैं खुद लोगों को बोल रही होती हूँ कि यार प्लीज़ फीडबैक दो, क्योंकि ना मुझे खुद मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई फीडबैक देता है। तो इफ़ यू मेड इट टिल दिस पॉइंट, तो प्लीज़ मतलब कि लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट ये चीज़ है। लेकिन जो है, थैंक यू सो मच यू ऑल फॉर लिसनिंग टू इट। आई विल मे बी क्रॉप दैट होल थिंग, or I hope to see you all very soon with another episode. Or if there's some topics that you want me to discuss, to let me know. It would be मतलब कि it would be nice that I don't have to think about a topic by myself. लेकिन yeah, I'll be back, and you all can follow me on Instagram, which is the brown girl rant. कल मैंने बाहर जाना है, और मैं भूल गई थी कि मेरा वेडनेसडे का प्लान है, एंड मतलब कि मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। अब मैं फिर से मुझे स्ट्रेस होना शुरू हो गया कि पता नहीं मैंने कैसे जाना है। लेकिन कल मैं जा रही हूँ, तो आई होप दैट आई विल व्लॉग अबाउट इट एंड पोस्ट अ व्लॉग अबाउट इट। तो चेक मेक श्योर टू चेक दैट आउट, डोंट मेक श्योर मतलब कि अगर देखना है तो देख लेना, मेरे इंस्टाग्राम पे होगा।
or if you want to see me being crazy and having a breakdown to, then please follow me on Twitter. It's Rabi at Rabi as MS. So bye bye. Thank you all. Bye.